शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा मोरया। Okay, before I begin, I have 3-4 हफ्ते पहले I lost my mother, my guide of my life. हमेशा बैठती थी, right? She used to attend all my sessions and she was very proud that I do these sessions. बहुत सारे कहानियाँ जो मैं बताता हूँ काफ़ी हद तक it is something that I heard from my mother, right? बचपन से जो कहानियाँ सुनाते थे उस कहानी को मैं पिरो के and then over a period of time listening to others, mapping things, putting things together. तो कहानी सुनने का और कहानी बताने का जो पागलपन है वो शायद विरासत में मुझे माँ से मिला है, right? And that whole thing is something that I got from my mother. संतों के प्रति जो आदर भक्ति एक लगाव भी मुझे शायद मेरी माँ से ही मुझे विरासत के तौर पे मिली है. She has met over a dozen परब्रह्म सन्यासीस, परब्रह्म गुरु उनको मिले हैं. वो भगवान रमण महर्षि, काफ़ी बार बताया भी है मैंने, भगवान रमण महर्षि के यहाँ पे जब भगवान जीवित थे, she was there for 2 years as a child, right? So a very blessed soul. She lived her life and she's no more with us. काफ़ी लोग मुझे बताते भी हैं, there are times when during the sessions कभी मैं कहीं अटक जाता हूँ या कभी मुझे डाउट होता है तो I used to ask my mother. अभी पता नहीं मैं किसे पूछूंगा, right? Whenever I get stuck, I don't know whom I'll ask. I'm sure she will ensure that I don't get stuck. I'm sure she's watching me somewhere and I don't get stuck. आप लोगों की सभी, all of you all stood in support, got all of your condolences messages. Thank you for being with us in those difficult days. भगवान भी ना अजीब है. He is given 2 boons to us, और हमें पता भी नहीं है कितने बड़े boons हैं हमारे लाइफ में. भूल जाने की क्षमता, ability to forget, right? Forget as in one can never forget their parents, but हम रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे we start getting occupied with something else and लोगों का memories distant होते जाते हैं. So ability to forget and ability to sleep, कितना भी दुख हो इंसान को नींद तो आ ही जाती है, right? These two, I guess, are the biggest gifts given by God to us. We are able to conduct our lives. हमें लगता है कि माँ पिता ना हो तो आगे कैसे, what after them? But सीख ही लेते हैं हम. जीवन तो चलते ही रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं है. Nothing new for me. For ages it has been happening. Everybody and many of us have lost parents. And we all continue to live our normal lives. So it is because of our ability to forget, ability to sleep, get up and start doing something. But आज माँ का याद करना मेरे लिए it was given because she used to always sit here. We have a chair kept for her here. I'm sure she is listening from wherever and blesses me to do this session as well as I can. हमने लास्ट हफ्ते में we had started संत जनाबाई की कथा. I had told us it's a very small चरित्र, small as in the number of instances that are recorded, वो small है. उनका अनुग्रह, उन्होंने जितने सैकड़ों अभंग लिखे हैं उन्होंने, more than 300-400 अभंग्स that are available now. You can just imagine how much were actually written. So that is always there कि वो छोटे नहीं होते हैं. हमें जितना आज पता है उनके चरित्र के बारे में वो थोड़ा कम है. So I thought I'll cover it in 2 sessions. I couldn't cover the immediate next week because we started it 1 month back and then during the intervening week my mother passed away. So I thought I'll cover that particular story and finish and give it a finishing. तो हमने देखा था, अच्छा इसमें ना I was going through some research material on
ऑन जनाबाई, बहुत सारी जगहों में ना उनको कवियत्री जनाबाई करके रेफर किया जाता है या कवि नामदेव करके रेफर किया जाता है। और ये पढ़ के एक्चुअली मुझे बहुत दुख हुआ, बिकॉज ये कोई सिर्फ कवियत्री और कवि नहीं है, दे आर नॉट पोएट्स, राइट, दे आर सेंट्स, वो संत है, राइट। कविता उन्होंने अपने सहज रूप में उन्होंने अभंग बना लिए, राइट, बट दैट वाज नॉट देयर मेन स्टे, दे वर नॉट जस्ट पोएट्स। पोएट्स तो आजकल बहुत सारे हैं, दे आर नॉट जस्ट पोएट्स, दे आर सेंट्स। And in couple of places in Wikipedia, I actually made a point to kind of write a feedback and try and change, because इनको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आगे जाके वही रह जाएगा, क्योंकि लोग गूगल देख के ही सीखते हैं आज, तो वो फिर then that will become a permanent fixture. They will only be known as poet Janabai. It is not poet Janabai, it is Sant Janabai, right? कविता बने वो अपने आप बने, right? मगर they are saints for the kind of life that they led and for their bhakti towards विठला। ये भी हमने देखा लास्ट टाइम कि जनाबाई की जो भक्ति का जो स्वरूप है, जो दो क्वालिटी, दी फ्लेवर ऑफ हर भक्ति इज दैट ऑफ गुप्त भक्ति या शांत भक्ति। उन्होंने भक्ति की ये बहुत दिनों तक तो किसी को भी पता नहीं था, राइट, उनके घर पे रहने वाले लोगों को भी पता नहीं था। नामदेव महाराज को पता ही था, बिकॉज नामदेव महाराज न्यू द रहस्य ऑफ आवर अवतार and he knew that Vithala will do an anugrah on her and then she will become a saint, इसीलिए तो वो जाके वो घर पे लेके आए उनको, but not anybody else, everybody else didn't know. Janabai only was lived like a servant at Sant Namdev's house. We had covered couple of गुप्त भक्ति के कोई instances हमने cover भी किए थे। I'll cover a couple of them more, very interesting I came across. साउथ में जैसे वेस्टर्न इंडिया में हम लोग को वी फाइंड वारकरी सेंट्स, जो सैकड़ों ऑलमोस्ट हजारों थे, अभी हमें उतने लोगों का पता भी नहीं है, हिस्टोरिकली वी लॉस्ट देम। ऐसे साउथ में ना नायन मार्स करके थे, ये मैंने पहले भी बताया है, शिवा के भक्त थे, शाइवाइट्स थे। देयर 63 नायनमार्स, ओके, वहां पे भी प्रमुख रूप में 4 नायनमार थे, सुंदर मूर्ति नायनमार, माणिक्य वाचकर नायनमार, ओके, देन यू हैड ऐसे ज्ञान संबंधर नायनमार। सो ऐसे काफी 4 मुख्य ऐसे थे, जैसे यहाँ पे नायनेश्वर, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज ऐसे थे, वहां पे भी वैसे 3-4 प्रमुख थे। बाकी 59, 58, 59 देयर आर लॉट ऑफ सेंट्स जिनके बारे में लिखा गया है। वो पेरिय पुराण करके एक है, जैसे यहाँ पे भक्त विजय है, वहां पे वो पेरिय पुराण में उन सारों 63 लोगों के बारे में लिखा गया है। उसमें एक नायनमार, उनका जो फ्लेवर ऑफ भक्ति था दैट वाज अ गुप्त, एक शांत रूप में, एक गुप्त रूप में वो भक्ति करते थे। जो जिस गांव में रहते थे उनके आस पड़ोस में भी उनको पता नहीं था कि ये इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े भक्त हैं। तो एक गांव में रहते थे, वो गांव वाज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर किंगडम, ओके। वो राजा जो था, वो राजा भी एक शिवा का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। तो वो राजा के मन में आता है कि मुझे एक मंदिर का निर्माण करना चाहिए, शिवालय का निर्माण करना चाहिए। राजा है, राजा के पास पैसे की कमी नहीं है, वो थाट से अपना चालू कर देता है, प्लानिंग करना चालू कर देता है। आगम शास्त्र से एक लैंड ले लेता है, स्टोन्स टू बिल्ड द वॉल्स एंड द टेम्पल्स, एंड फिर मूर्ति बनाने के लिए जो लगता है, शिला लगता है, वो उसका चूज करना, ये सब शास्त्र के अनुसार उन लोग चालू कर देते हैं। उसी समय ये जो संत है, जो अपने गांव में बैठे हैं, गरीब हैं, वो बोल रहे राजा तो एक निर्माण कर रहा है मंदिर शिवा तुम्हारे लिए, मैं कहाँ जा सकता हूं, मैं अपने मन में तुम्हारे लिए एक शिवालय का निर्माण करता हूं करके ही स्टार्ट्स बिल्डिंग इट इन हिज माइंड, एंड एज डिटेल्ड एज अ टेम्पल वुड गेट बिल्ड। वो एक्चुअली प्राइस मन में वी विल डिसाइड, ये स्टोन का ये प्राइस है, वो ट्रांजैक्शन करेंगे, उसको जमा करेंगे, उसको ही विल स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द टेम्पल, ही विल स्टार्ट सेलेक्टिंग द स्टोन, द आइडल, उसका तराशना, ये ना मन ही मन में ही इज एक्चुअली गोइंग थ्रू द एंटायर डिटेल्ड प्रोसेस इन अ मैनर दैट अ पर्सन वुड डू फिजिकली, द वे किंग इज डूइंग। तो ये पैरेलली चल रहा है, एक बाहर के राजा बना रहा है और एक अपने मन में वो संत बना रहे हैं। सब होने के बाद नेत्र उन्मीलन, कुंभाभिषेक करने का समय आ जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने का समय आ जाता है आइडल लिंग का। तो ये भक्त है, ये पूजा करने बैठते हैं और शिवा से वो अपॉइंटमेंट मांगते हैं। वो इतना बड़े भक्त है, राजा भी।
वो शिव जी को अपॉइंटमेंट मांगते हैं कि इस दिन को कुंभाभिषेक का दिन तय हुआ है, आपको आना है, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, आपको उसमें आना ही है, एंड यू हैव टू बिकम वन विद दैट शिला, दैट रॉक. तो शिवा गिव्स एन आंसर एंड ही सेज, नहीं बहुत अच्छा है तुम निर्माण कर रहे हो, मगर मेरे डायरी मैंने देखा उस दिन मैं कोई और जगह पे कुंभाभिषेकम के लिए जा रहा हूँ, आई कैन नॉट कम, तुम किसी और दिन रख लो. इट इज अ लीला, राइट? शिव जी सब जगह पे व्यापी है, राइट? यहाँ पे भी हो सकते हैं, वहां पे भी हो सकते हैं. ही डिड नॉट हैव डन दिस, बट ही डिड दिस एज अ पार्ट ऑफ द लीला टू एंश्योर दैट वो संत जो गुप्त रूप में कर रहे हैं उनका भी प्रकट होना चाहिए. तो ये राजा अचंभित है, बोल रहे तुम्हारे ही राज्य में एक और कोई मंदिर का निर्माण कर रहा है, ऐसे वो गांव का नाम है, वहां पे निर्माण कर रहा है वो, तो मुझे वहां पे जाना है कुंभाभिषेकम के लिए, उसने पहले अर्जी डाल दी थी, तो मुझे वहां जाना है. तो दिस राजा इज सरप्राइज्ड, मैं इतना बड़ा मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, मेरे ही राज्य में कोई और निर्माण कर रहा है, खबर तक मुझे नहीं मिली है, ये कैसे हो सकता है? ओके, बट ही नोज शिवा विल नेवर लाई, एंड वो सच्ची एक भक्त थे. तो बोले ठीक है, अगर वहां पे निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे जो भी हमने सामान इकट्ठा किया है कुंभाभिषेकम के लिए वो सब लेके उधर जाएंगे, बिकॉज इफ शिवा इज प्रिफर्ड दैट पर्सन, इट इज अ बेटर टेम्पल देन माइन. ओके, तो सारा सामान लेके वो गांव चले जाते हैं. गांव जाते हैं तो देखते हैं अरे ये तो कुंभाभिषेकम का क्या होता है, नॉर्मल गांव है, रोजमर्रा का जिंदगी चालू है. कुंभाभिषेकम जब होता है तो पूरा गांव है सेलिब्रेटरी मोड में होना चाहिए. तो ऐसे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है. यहाँ पे कोई मुझे एक मंदिर है मगर नथिंग हैपनिंग. तो वो मंदिर में जाके पूछते हैं कि यहाँ पे कुंभाभिषेकम हो रहा है क्या? बोले नहीं, यहाँ पे तो कोई कुंभाभिषेकम नहीं है. तो राजा को ना डाउट आ जाता है, तो पूछते हैं यहाँ कोई संत है क्या? तो बोलते हैं यहाँ पे कोई संत वगैरह तो हमें तो नहीं पता. हाँ, यहाँ पे वो बाहर कट्टे पे आके एक इंसान बैठे रहता है, वो ध्यान में अपना आंख बंद करके ध्यान में दिन भर यहीं पे बैठे रहते हैं. कभी आंखों से आंसू बहता है, कभी किसी ने खाना दे दिया तो खाते हैं, नहीं तो अपने आप चले जाते हैं. क्या संत है नहीं पता नहीं है, मगर एक बहुत अच्छे इंसान यहाँ पे आके बैठते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि यही है. तो आते हैं और उनको नमस्कार करते हैं. नमस्कार करने के बाद वो बोलते हैं कि ये सारा सामान ये आपके मंदिर के लिए है. तो ये ना लज्जित हो जाते हैं, संत लज्जित हो जाते हैं. बोलते हैं राजन आपको कैसे पता चला? बोलते हैं शिव जी खुद मेरे पूजा के इसमें आए थे और उन्होंने बताया कि आप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं. मुझे नहीं पता कहाँ निर्माण कर रहे हैं आप, बट मेरे सारा सामान लेके आ गया हूँ. तो उन्होंने ना इज एक्चुअली रिटन अ सॉन्ग ऑन शिवा सेइंग दैट मुझ जैसे तुझ इंसान का जो निर्माण के लिए भी तुम आ गए शिवा, ये क्या अनुग्रह है, राइट? तो ऐसा होता है गुप्त भक्ति. भगवान विल रिस्पॉन्ड इन दैट मैनर. एक भक्त विजय में भी अपेरेंटली देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. आई विल नॉट टेक टू मच टाइम बिकॉज यू हैव टू कम बैक टू जनाबाई स्टोरी. He is a Rama Bhakta. Okay, so ये ना एक there is this king. Okay, there is a king and there is his wife. That king is basically his wife was a very big devotee of Rama. She used to do daily puja. She used to ensure that everything happens properly. राजा अपना जो भी राज्य का निर्वाह करना है वो very properly he used to take care of the administrative responsibilities. He was a perfect husband, he was a perfect king, a perfect father, a perfect son-in-law. सब अपना काम जो भी है वो ढंग से करते थे. मंदिर आके नमस्कार करो तो वो नमस्कार नहीं करते थे. तो बीवी के मन में ना ऐसा है कि ये क्या है, मतलब सब इतने अच्छे हैं मगर इनको राम के प्रति भक्ति क्यों नहीं है? मैं इतना कुछ कर देती हूँ, नमस्कार भी नहीं करने आते हैं. ऐसे करके शी इज ट्राइंग टू टेल अबाउट राम सो दैट उनको पता चले, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भक्ति आ जाए. एक दिन रात को सोए होते हैं, सो के उठते हैं. उठने के बाद ना दैट वाइफ इज वेरी हैप्पी एंड शी सेज राजन पता है आपको क्या हुआ कल रात को? तो राजा बोलते हैं क्या हुआ? तुम सोए हुए थे, तुम्हारे मुंह से राम 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 करके तुम चिल्ला रहे थे. देखो तुम्हारे अंदर भी भक्ति जाग गई है. मैं तुम्हें आई कुड मैनेज टू एंश्योर दैट तुम्हारे मन में भक्ति जाग गई है. वो राजा उठता है, शर्मिंदा हो जाता है. वो बोलता है ओह मेरा सीक्रेट बाहर पता चल गया क्या? अभी जी के फायदा नहीं है. दैट इज व्हाट ही सेज. ही वाज डूइंग राम भक्ति सो सीक्रेटली दैट नोबडी शुड नो अबाउट हिज राम भक्ति, राइट? ऐसे भक्त भी होके गए हैं, ऐसे संत भी होके गए हैं. देयर आर ब्यूटीफुल स्टोरीज. आई थॉट आई शुड जस्ट गिव दैट फ्लेवर. मीनवाइल नामयाची जनी
नामयाची जनी मीन्स नामदेव के यहाँ पे जनी, ओके, जनी इज वर्किंग। वो घर पे लेके जाते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर के बारे में सुना, उनके माँ गुणाई, राइट, तो पूछती है बच्ची कहाँ से लेके आए हो, तो बोलते हैं नहीं तुम्हें चाहिए था ना काम के लिए, तुम्हें लेके आया हूँ। बट वाइल इंट्रोड्यूसिंग टू हिज वाइफ शी सेज हमारे 5 बच्चे हैं, ये छठवा है, यू एंश्योर दैट यू टेक केयर ऑफ हर एज अ डॉटर, बिकॉज नामदेव महाराज नोज द रहस्य ऑफ हर अवतार। बट क्या करे, घर पे इतने लोग रोज आना जाना था, इतना काम द लेडीज हैड, दैट जनी एक्चुअली बिकम्स द सर्वेंट एट नामदेव महाराज प्लेस। विठल ने क्या किया, विठल ने जनाई के पिताजी से, जनी के पिताजी और माँ से उन्होंने क्या बोला कि मेरे सेवा में भेज दो, राइट। तो एंश्योर्स दैट नामदेव महाराज गेट्स, बिकॉज उनके सेवा में मतलब नामदेव महाराज एनीवे लगे हुए उनके सेवा में, उनके घर पे काम करने के लिए विठल महाराज गेट्स जनी टू हेल्प द नामदेव महाराज हाउस। द इंटेंशन वॉज नेवर टू मेक हर वर्क, बट देन वो काम ही उतना था। तो चंद्रभागा से पानी का रोज लेके आना, उस जमाने में ऐसे नल खोल दिया पानी आएगा तो नहीं है, वो संप बांधते थे, कन्नड़ा में तोट्टी बोलते हैं। देयर यूज्ड टू बी अ स्मॉल पिट, ओके, डग, और उसको साइड से थोड़ा चूना बीना लगा के एंड यू कैन फिल वाटर। तो उस दिन का पानी वहां पे जमा कर लेंगे, नेक्स्ट दिन वापस चंद्रभागा से जाके बड़ा बड़ा घड़ा में लेके आना पड़ता था और यहाँ पे डाल के देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट फॉर कुकिंग, यूजिंग इट फॉर बेदिंग, व्हाटएवर। इसी तरह से गोबर के उपले बना के फिर उसके बाद यूज इट फॉर फ्यूल। ऐसा नहीं कि गैस ऑन किया, पाइप गैस आ गया, राइट। गेहूं को पीस के, वो पिसा हुआ को गोंद के फिर भाकरी या चपाती बनती थी। आजकल वो हमारे माँ के जमाने में तो गेहूं लाते थे, चक्की में करके आते थे, अभी तो गेहूं ही मिल जाता है, अभी नेक्स्ट जनरेशन में तो चपाती मिल जाएगा शायद। we've gone, steps ahead। तो जमाने में you have to grind that। आज ग्राइंड करेंगे तो कल मिलेगा, you have to plan। तो काम बहुत होता था, राइट। फिर सब्जी बनाना, फिर परोसना, खाना, उसको साफ करना, फिर कल का काम के लिए काम पे लग जाना। So there used to be a lot of continuous work that used to happen। But all this work at the same time, Janai used to keep singing abhangs of Mauli, Namdev Maharaj, Chokha Mela, गोरा कुंभार, ये सब समकालीन थे, नामदेव महाराज के समकालीन थे। हम नामदेव महाराज के जब स्टोरी कवर करेंगे ना, इट इज अ वेरी ब्रॉड, इट्स अ वेरी ह्यूज स्टोरी, बिकॉज ये इनका सबका चरित्र भी उसमें आएगा। सो दैट इज द रीजन मैं टाल रहा हूँ, कभी करूंगा व्हेन आई गेट स्ट्रेट, मे बी 7, 8, 9 वीक्स। तो नामदेव महाराज के समकालीन थे, तो वो सब गाते थे, वो उनको सुनाई देता था जनाई को। तो जनी यूज्ड टू कीप सिंगिंग दोज अभंग, विठल का नामस्मरण करती थी। संतों का आना जाना ताता लगा रहता था, राइट। माउली, निवृत्तिनाथ, सोपान, मुक्ताबाई, चोखा मेला बाहर से गा रहे हैं। तो नामदेव महाराज क्या करते थे, नामदेव महाराज न्यू कि जनी शुड गेट द भाग्य ऑफ मीटिंग दिस सेंट। सो आते थे तो जनी को बुला लेते थे, जनी आ जाओ, इन लोग आए, देखो इनके पैर धोने के लिए पानी दे दो, इनको नमस्कार करो। तो इस तरह से हर लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड सेंट्स, डिवोटीज, नामदेव महाराज हाउस एंड लोड्स ऑफ वर्क, राइट। हार्डली एनी टाइम टू स्लीप। 12-1 बजे शायद सोती थी, तो 4 बजे उठ के वापस काम, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम शी यूज्ड टू गेट। ये पूरा चक्कर में ना उसको कभी पंढरपुर के विठल मंदिर में जाके दर्शन भी लेने के लिए उसको मिल नहीं रहा था टाइम। शी वॉज सो एनग्रॉस्ड इनटू वर्क दैट शी नेवर गॉट इवन टाइम। आज भी अगर देखेंगे तो पंढरपुर मंदिर के बहुत करीब ही है नामदेव महाराज का घर। इतने करीब होने के बावजूद शी नेवर गॉट अ चांस टू गेट इनटू द टेंपल एंड हैव अ दर्शन ऑफ विठला, ओके। तो इस तरह से वो शी वाज एनग्रॉस्ड इनटू हर वर्क। इनिशियल डेज में तो हमको पता है, राइट, हम जब जॉब नया ज्वाइन करते हैं तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, कोई साथ में रहता है ट्रेन करने के लिए, ऐसे करते हैं, ये ऑफिस का ये प्रोसेस है, तो ये एसओपी है, पढ़ लो, देयर इज सम अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दैट हैपेंस। एक बार वो ट्रेनिंग हो गया, आप लोग सीख लेते हैं, देन यू आर इंडिपेंडेंट, यू हैव टू डू योर ओन वर्क, राइट। तो इस तरह से कुछ इनिशियल डेज नामदेव महाराज की बेटी ने सिखा दिया, या उनके बीवी ने या गुणाई ने सिखा दिया थोड़ा बहुत, ये ऐसे करो वैसे करो, पहले सुबह जाके पानी कर लो, उसके बाद ये कर लो, टाइप्स थोड़ा सिखाने के होने के बाद जनी इज ऑन हर ओन नाउ, राइट। वो गड़ा वगैरह रखा है, इट सेम्स, सो दैट प्रोबेबली वाज हाफ द साइज ऑफ जनी हरसेल्फ। वो वहां से वो पूरा भार लेके चंद्रभागा से पानी लेके आती थी। तो एक बार क्या होता है,
शी इज पिकिंग अप एंड देन हम लोग क्या करते हैं जब भारी सामान उठाते हैं तो रख रख के आते हैं ना, थोड़ा अपने आप को थोड़ा गिव योरसेल्फ सम टाइम सम स्पेस। तो इस तरह से वो लेके आई है, एक जगह पे रखी है, थोड़ा शी इज रेस्टिंग फॉर अ व्हाइल सो दैट शी कैन अगेन पिक अप एंड देन अगेन स्टार्ट ऑफ टिल द होम। Milind, you might have to go on mute. Thanks. So इस तरह से वो आ रही है तो पीछे से एक आवाज आता है, जनी करके कोई छोटी सी लड़की पुकार रही है। तो जनी टर्न्स बैक एंड शी सीज अ वेरी ब्यूटीफुल यंग गर्ल, यू नो, उसके जैसे ही मराठी में परकर पोलका बोलते हैं, हिंदी में राजेश जी ने मुझे कल बताया घाघरा चोली। उस जमाने में क्या ना, छोटे बच्चों को ना दे यूज्ड टू, इन तमिल इट्स कॉल्ड एज पावड़े दावनी। So it used to be like downy, that used to be like a small shirt kind of a thing, you know, long blouse kind of a thing. और नीचे there used to be a घाघरा, you know, full length till the knee, till the ankle. You know, it used to be a properly covered dress. आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, small girls के लिए, you know, that's ये important है ये बताना, क्योंकि ना जनाब के स्टोरी में आगे आएगा, okay, there is a relevance to this particular dress attire. So, ऐसे पहन के, दो चोटी बांध के, गजरा डाल के, आंखों में काजल, काली लड़की, बहुत ब्यूटीफुल आईज एंड वेरी ब्यूटीफुल, चंदन का टीका लगा के बहुत ब्यूटीफुल है। तो जनी देखती उसको, खुश हो जाती है देखती, कितने सुंदर हो तुम, कौन हो तुम? तो वो बोलती है मुझे तो बड़े बहुत सारे नाम से जानते हैं लोग, तुम मुझे रंगामा बुला लो या कृष्णम्मा बुला लो। बोलते अच्छा रंगामा बुलाती हूँ मैं, मगर तुम कहाँ रहती हो? मैंने आज तक तो तुम्हें देखा नहीं, मैं कुछ दिन से यहाँ पे रह रही हूँ, मैंने तुम्हें देखा नहीं। नहीं मैं यहीं पे रहती हूँ, बहुत लोग जानते हैं मुझे, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। तो बोलती है तुम छोड़ो, पानी मैं उठा लेती हूँ तुम्हारे लिए, मैं आके तुम्हें दे देती हूँ। तो बोलते नहीं दादी जी, घोड़ाई है ना, दादी है ना, तो बोलते दादी जी गुस्सा करेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट है वो, तो नहीं मैं ही उठा के लेके जाती हूँ। बोलते नहीं डरो मत, मैं कभी पकड़ी नहीं जाती हूँ, मुझे बहुत आदत है ये चोरी का काम करना। तो बोलती है तुम कोई टेंशन मत लो, मैं कर लेती हूँ, दरवाजा तक आती हूँ, अंदर नहीं आऊंगी, पीछे के दरवाजे से चल करेंगे हम। तो शी स्टार्ट्स हेल्पिंग। रोज जब पानी लेके आते थे तो दैट रंगामा यूज्ड टू पिक अप, थोड़ा थोड़ा करके वो अंदर भी आना चालू कर देती है, गेहूं पीसने में, गोबर के उपले बनाने में, बर्तन साफ करने में। शी विल नॉट गो टू द किचन, बिकॉज किचन में जाएंगे तो बाकी लेडीज भी हैं, राइट। ये पीछे के जो काम होते हैं, मराठी में परसाद बोलते हैं, मतलब दी बैकयार्ड में जो भी काम होते थे, वहां पे शी यूज्ड टू स्टार्टेड टू हेल्प। जनी को भी अच्छा लगने लगा, उसके साथ एक उसके हम उम्र का एक लड़की है, उसको देख के इसे अच्छा भी लग रहा है, मन भी शांत हो रहा है, यू नो, शी फील्स वेरी गुड व्हेन शी इज अराउंड। तो इस तरह से रंगामा स्टार्ट्स हेल्पिंग जनी। और ये रंगामा कौन है किसी को पता नहीं है एक्सेप्ट नामदेव महाराज नोज ये रंगामा करके कोई आया है, एंड ही नोज ये चिच्चोर है, ये विठला इज हेल्पिंग हर, ओके, डू ऑल द नीडफुल। बट उस नामदेव महाराज भी एक संत है, राइट, ही नोज कि ये कुछ लीला चल रहा है। वो लीला में ना वो आके वो सस्पेंस नहीं खोलेंगे, वो स्पॉइल स्पोर्ट नहीं है, यू नो, वो पिक्चर चालू है एंड सडनली समबडी विल कम, अरे मर्डर इसने किया था। पिक्चर देखने का मजा ही चला जाएगा, यू नो, ऐसे नहीं करेंगे, वो दृश्यम का सस्पेंस बता दिया टाइप्स। तो he was also enjoying the manner in which Vithala is playing that लीला, जनी पे जो लीला हो रहा है, जनी पे जो अनुग्रह हो रहा है, उसका आनंद, उसका लुत्फ उठा रहे हैं। नामदेव महाराज इज वंडरस्ट्रक, सृष्टि के दाता, सृष्टि के पिता, एक नौकरानी को मदद करने के लिए आ गए हैं। वो क्यों आए हैं, राइट? मंथरा ने जो उपकार किया था राम पे, हमने कवर किया था इसके पहले वाले सेशन में, कंबा रामायण में मंथरा के पास आके राम जी बोलते हैं 12 साल हो गए मंथरा, अब तुम जिसके लिए आए हो वो काम होना चाहिए। तो मंथरा बोलती है कि सारे लोग मुझे नफरत करेंगे, पूरा रामायण में नफरत हम किससे करते हैं, कैकेयी से भी नहीं करते, मंथरा से करते हैं, राइट। तो बोलते सारे लोग मुझसे नफरत करेंगे, मुझे मुक्ति क्या कब मिलेगी, यू नो, व्हाट इज मेरी गति? तो तुम्हें सदगति मिलेगी। Because Manthara did that उपकार on Ram in that avatar, Vitthal comes and helps. कुब्जा भी वैसे ही कृष्ण अवतार में मंथरा बनी कुब्जा। कुब्जा also used to do गुप्त भक्ति with कृष्णा। वो जो भी उसने सेवा की उसका repayment में ensured that he Vithala comes and hi Anil, I'm sorry, yeah, thanks. So that way he was helping. Vithala was helping as a Rangama. Actually there's a beautiful अभंग जो नामदेव महाराज ने लिखा है
रंगम्मा माजी रंगम्मा, रंगम्मा माजी रंगम्मा, हरी रे कृष्णा माजी, हरी रे रंगम्मा माजी रंगम्मा, ऐसे उनका एक अभंग है. एंड ही एक्चुअली सेज किस तरह से तुम आके मदद कर गए जनी को. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अभंग. ओनली नामदेव महाराज न्यू कि ये सब जो भी कर रहे हैं लीला ये विठल महाराज कर रहे हैं, बाकी किसी को पता नहीं है. इस तरह से उनका रंगम्मा इज हेल्पिंग जनी. ओके, जनी ऑल्सो जब काम करती थी विठल महाराज का, अपना विठल पांडुरंगा विठल का ही नाम लेते लेते वो काम करती थी. उनका भक्ति धीरे 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 बढ़ने लग गया था. जनी के मन में है कुछ तो पुण्य किया रहेगा मैंने, राइट. पंढरपुर में आने का मुझे भाग्य मिला, वो भी एक संत नामदेव महाराज जैसे एक संत के घर पे आने का एक भाग्य मिला. इतने सारे संत और इतने सारे भक्त यहाँ पे आते हैं, उनका सेवा करने का एक मुझे भाग्य मिला है. शायद बहुत पुण्य किया है मैंने, बट कहीं तो मैंने बहुत पाप भी किए हैं क्योंकि मुझे अब तक विठल के दर्शन ही नहीं हुए हैं, राइट. तो बोल रहे मैं घर के इतने करीब हूं, मैं मंदिर के इतने करीब हूं. हो जाता है, राइट. हम लोग कभी कभी अपने घर के करीब वाले मंदिर में भी बहुत दिन से जा नहीं पाते हैं. कभी कभी साल गुजर जाते हैं एंड वी डोंट गो टू द टेम्पल नियर बाय. मन में चालू रहता है कभी शिरडी जाएंगे, कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, बट जो घर के बाजू में जो मंदिर होता है ना, वहां पे भी हम जाते नहीं है, राइट. दैट इज व्हाट हैपेंस. तो उसके मन में बहुत ऐसे तप विरह जो है वो बहुत बढ़ रहा है. धीरे 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 इट इज इंक्रीजिंग. शी कीप्स हियरिंग विठल नामदेव महाराज अभंग गा रहे हैं, चोखा मेड़ा गा रहे हैं, माउली गा रहे हैं. उनके कंटिन्यूअस जो भक्त जो आते हैं उनके घर पे वो भी विठल महाराज की बात करते हैं. वो हंसता हुआ चेहरा कितना सुंदर था, वो मकर कुंडल, वो तुलसी का हार, वो चंदन का टीका, वो समचरण, वो पीतांबरी, वो कमर पे हाथ, कितना सुंदर दृश्य है. ये सब बात करते हैं. खाना खाते खाते सब लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं. वो प्यारा सा अलंकार, कोई बोलेगा आज ना अमसुल कलर में उनको पीतांबरी पहनाया था, आज उनका वो मुकुट देखा कितना सुंदर था, आज उनको मक्खन का नैवेद्य चढ़ाया था. तो ये सब सुनती थी तो उनको लगता था कि मुझे कब दर्शन मिलेगा, मुझे देखने का तो भाग्य भी नहीं मिल रहा है, मुझे ये सब सुनाई दे रहा है मगर मुझे देखने की भाग्य क्यों नहीं है. वाई कांट आई लुक एट वो सुंदर चेहरा. कभी किसी ने प्रसाद ला लिया, लेके आ गए तो प्रसाद भी उसको मिल जाता था. बोलते तुम्हारे प्रसाद भी मिल जाता है, तुम्हारे बारे में सुनने को मिलता है, विठ्ठला तुम्हारा सुंदर रूप मुझे कब देखने को मिलेगा. ऐसे ना वो तड़प पिघल पिघल के अंदर ही अंदर घुट घुट के ना वो भक्ति कर रही है, रो रही है. मन में ये भी है मैं बाहर दिखा नहीं सकती हूँ, बाहर इतने बड़े संत लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, मैं तो साधारण सी एक नौकरानी हूँ. मैं बाहर बोल भी नहीं सकती हूँ कि मुझे विठ्ठल के दर्शन दिलवा दो. मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, एक नौकरानी हूँ, इतने बड़े संत यहाँ पे है. तो ऑल दैट इज अ मिक्स्ड फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. वो एक मिक्स्ड फीलिंग है. बट वो ये भी मन ही मन तड़प रही है, ऐसे क्यों तड़पा रहे हो, मुझ गरीब को अभागन को क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो. मुझे मुझे आपका बन जाना है. आई वॉन्ट टू बिकम योर्स. तुम्हारे चरण में गिर के मुझे रोना है विठ्ठला, तुम्हारा सुंदर रूप देखना है. सब इतने सारे वर्णन करते हैं, मुझे कब दर्शन दोगे, दर्शन दे दो विठ्ठला, दर्शन दे दो करके ना अंदर ही अंदर घुट रही है. मनुष्य का जन्म ले चुकी हूं मैं, मनुष्य का जन्म लेके अपने गांव भी बुला लिया, अपने एक संत के घर पे भी बिठा लिया, मगर दर्शन नहीं दे रहे हो, राइट. किसी ने चंदन दे दिया, वो चंदन लगा दिया, 2 दिन उसके सुगंध में रहती हूँ. किसी ने तुलसी का हार दे दिया, उसे लिपट के मैं सो जाती हूँ. ये सब ठीक है, कुछ तो भाग्य किया है मैंने, मगर तुम्हारा दर्शन मुझे चाहिए. इज व्हाट शी इज रियली सफोकेटिंग हरसेल्फ. और इस सफोकेशन में वो गा भी रही है. कभी माउली का अभंग, कभी नामदेव महाराज का अभंग. संत सहवास में बहुत लोग अभंग गा रहे हैं, वो गाती भी है. धीरे 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 वो खुद की भी अभंग गाना चालू कर देती है, मगर जोर से नहीं गाती है. बिकॉज उसके मन में है कि मैं एक नौकरानी हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं कैसे गा सकती हूं, लोग क्या बोलेंगे. वो डर के वजह से ना वो मन ही मन में गा रही है. काय करू मी तो सांगा तुम्ही पांडुरंगा, तुझे पाय रूप डोळा नाही देखिले गोपाळा. बोल रही है मैं क्या करूं, मन ही मन में गा रही है वो, मैं क्या करूं पांडुरंगा तुम्ही बताओ. काय करूं मी तो सांगा तुम्ही पांडुरंगा, मैं क्या करूं पांडुरंगा तुम्ही बताओ. तुम्हारे पैर, तुम्हारा रूप, तुम्हारे सुंदर आंखें मैंने नहीं देखा है गोपाला. काय करू या कर्मासी नाश हो तो आयुष्याची, जन्म येऊनी या दुख नाही पाहिले श्रीमुख. बोल रही है जन्म तो ले लिया मनुष्य का, दुर्लभ होता है, तुम्हारे गांव में भी बुला लिया, लेकिन नाश हो रहा है मेरा ये जीवन. तुम्हारा दर्शन, श्रीमुख का दर्शन नहीं हुआ,
तो पूरा जीवन मेरा नाश हो जाएगा। लाले पुरवसी हमसे मणे जनी प्रीति साचे। बोल रही है अगर मेरा प्रीत, मेरा भक्ति अगर सच्चा है तो इतना सा मेरा एक कहना एक सिर्फ पूरा कर दो। पुरविसी अमचे मणे जनी, इतना सा एक मेरा जो लालच है, लाले पुरविसी अमचे मणे जनी प्रीति साचे, मेरा वो लालच को पूरा कर दो भगवंता। काय करू मी तो सांगा तुम्ही पांडुरंगा। ये मनी मन गा रही है। देर इज अ वेरी मॉडर्न भक्ति गीत, ओके। जनी के मन में जो व्यथा चालू है, मैं ये भक्ति गीत जब भी सुनता हूं, ये दत्ता पाटिल करके अभी हाल ही में 30-40 साल पहले किसी ने लिखा है, प्रहलाद शिंदे ने गाया हुआ एक भक्ति गीत है, बहुत फेमस है, आप लोगों ने काफी बार सुना भी होगा। मगर मैं जब भी ये सुनता हूं ना तो मुझे हमेशा जना भाई की याद आती है। वो तड़प, वो दर्शन के लिए तड़प जो है वो इस हद तक पहुंच गया है। वो ये गाने में इट फीचर्स इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। और आज ना मैं आई विल नॉट सिंग द एंटायर सॉन्ग एज अ ट्रिब्यूट टू माई मदर बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड मी टू सिंग एंड गाना कभी सीखा नहीं, बहुत बोलती थी कि गाना सीखो सीखो, कभी सीखा नहीं। I thought I'll probably sing as a tribute to her if I can. Just 2 stanzas I will try and sing. दर्शन दे रे दर्शन दे रे भगवंता, दर्शन दे रे भगवंता। किती अंत आता पहाशी अनंता, किती अंत आता पहाशी अनंता। दर्शन दे रे भगवंता। द पोएट इज आस्किंग दर्शन दे रे भगवंता, कितना अंत देखोगे मेरा अनंता, अभी तो दर्शन दे दो। माय पिताची सेवा पुंडलिकाची, भक्ती पाहिली तू गोऱ्या कुंभाराची, तैसे येणे भावे तुझे कृपावंता। दर्शन दे रे भगवंता। माँ पिताजी का सेवा तुमने पुंडलिक की देखा, भक्ति पाहिली तू गोऱ्या कुंभाराची, गोरा कुंभार ने जो भक्ति की वो तुमने देखा, और उनको जिस तरह से तुमने दर्शन दिया ऐसे मुझे भी दे दो भगवंता। ऐकताच वाणी संत चोकोबाची, साक्षात प्रकटे मूर्ति विठ्ठलाची। चोखा महाराज को अंदर आने नहीं देते हैं, नदी के उस पार है, चंद्रभागा के उस पार बैठ के एकादशी के व्रत करने के बाद द्वादशी के पारण के लिए कोई ब्राह्मण नहीं आता है, रोते हुए बैठे हैं। पांडुरंगा मदद करो बोलते हैं तो यहाँ से जो मंदिर में जो मूर्ति है वो वहां से निकल के सीधा उस तरफ चले जाते हैं, राइट। ऐकताच वाणी, वाणी सुनते ही संत चोकोबाची, साक्षात प्रकटे मूर्ति विठ्ठलाची, वहां प्रकट हो गए। ऐसे दान देशी तुझा प्रिय संता, ऐसे तुम्हारे प्रिय संतों को जिस तरह से तुम दर्शन देते हो इस तरह से मुझे दर्शन देना। तूच जन्म देता, तूच विश्व करता, मन शांत होई तुझे गुण गाता, मन शांत होई तुझे गुण गाता। हीच एक आशा पुरवी तू आता, हीच एक आशा पुरवी तू आता। दर्शन दे रे भगवंता। तुम्ही जन्मदाता हो, तुम्ही विश्व के कर्ता हो, तुम्हारे गुण गाते ही मेरा मन शांत हो जाता है। तुमसे क्या, व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर यू। हीच एक आशा पूर्वी तो आता, ये इतना सा ही आशा है मेरा, उसे पूरा कर दो भगवंता। दर्शन दे रे भगवंता। ये लिखा किसी और ने है लेकिन इट परफेक्टली मैचेस टू द फीलिंग दैट जनाबाई मस्ट हैव गॉन थ्रू बिफोर गेटिंग द दर्शन। इस तरह से जनी अभंग अपने मन ही मन में लिख रही है।
ये एक जगह पे हो रहा है। एक दिन ज्ञानेश्वर महाराज विठल महाराज के दर्शन लेने के लिए आ जाते हैं पंढरपुर। विठल यूज्ड टू जनरली स्टैंड लाइक दिस, राइट? और ज्ञानेश्वर अगर आते हैं तो अर्चक अवतार से सीधा सगुण रूप में आके वो तो गले ही मिल जाएंगे। माउली वॉज द मोस्ट फेवरेट भक्त ऑफ विठला, राइट? लेकिन जब माउली उस दिन आते हैं ना, तो ये खड़े भी नहीं है, ये तो बैठे हैं और कुछ लिख रहे हैं, नीचे सर डाल के ना कुछ लिख रहे हैं। विठल इज राइटिंग समथिंग। तो माउली आते ही विठला करके नमस्कार करते हैं। तो विठला लुक्स एट हिम और वो पेन और जिस पे लिखते थे ना वो ऐसा पीछे छुपा लेते हैं, और छुपा के ऐसे पीछे रख देते हैं और बोलते हैं, अरे ज्ञानदेवा आ गए तुम? तो माउली पूछते हैं, हाँ मैं तो आ गया हूं, मगर तुम क्या कर रहे थे? कुछ लिख रहे थे, क्या कर रहे थे तुम? क्या छुपा रहे हो? बोलते नहीं नहीं कुछ भी नहीं। क्या? मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं ऐसे ही बैठा था बस। बोलते नहीं नहीं, तुम पहले से चोर हो, मुझे पता है कुछ तो कर रहे हो तुम क्या लिख रहे थे मुझे बताओ, मैं तभी मानने वाला हूं। तो विठल बोलते हैं, अरे तुम्हें पता चल गया क्या मैं कुछ कर रहा हूं? माउली बोलते हैं, हाँ हाँ, जैसे कि तुम्हें ऐसे लगा कि मुझे बताना चाहिए इसलिए मुझे पता चला। अगर तुम्हें गुप्त रूप में कुछ करना है तो यूं भी कर जाते। विठला ये सब नौटंकी मत करो, बोलो क्या लिख रहे थे? तो विठल ना शर्मा जाता है। विठल शर्मा के बोलते हैं, मैं ना अभंग लिख रहा था। तो माउली ना थोड़े से हंस पड़ते हैं। माउली बोलते हैं, अच्छा हम लोग सब लोग लिखते हैं तुम्हारे पे, तुम किस पे लिख रहे हो विठला? अभंग किस पे लिख रहे हो? तो विठल ना और शर्मा जाता है, वो सिर नीचे डाल के वो बोलता है, ज्ञानेश्वर मैं ना अपने आप पे लिख रहा हूं। तो माउली ना हंस पड़ते हैं। माउली बोलते हैं, हम लोग लिख रहे हैं, क्यों कम पड़ रहा है? इतनी बुरे दिन आ गए तुम्हारे कि तुम खुद पे अभी अभंग लिखना चालू कर दिया है। हम लोग जो गा रहे हैं वो तो नामदेव तो श्वास, एवरी ब्रेथ ही यूज्ड टू सिंग एन अभंग, 95 करोड़ अभंग इज संग। बोले इतने अभंग तुम पे गाए जा रहे हैं, तुम्हें वो क्या कम पड़ रहा है जो खुद के लिए अभंग लिखना चालू कर दिया? तो माउली बोलते, विठल महाराज बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं लिख रहा हूं, मगर मैं नहीं लिख रहा हूं। माउली बोलते हैं, एक मिनट, तुम ना ये कंफ्यूजिंग बातें मत किया करो मेरे साथ, पहले बोलो क्या कर रहे हो? बोले मैं लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, ये सब मत बताओ। मेरे बोलते क्या कर रहे हो? तो बोलते ऐसा वो सब छोड़ो, मैं तुमको दिखाता हूं, तुम पढ़ो। तो वो जो लिखा है ना, वो माउली को दिखाते हैं पांडुरंग। तो माउली स्टार्ट्स रीडिंग, he starts reading, he says, काय करू मी तो सांगा तुम्ही पांडुरंगा, तुझे पाय रूप डोळा नाही देखिले गोपाळा। वो देखते ही ये वो भाव, वो शब्दों को देख के वो he could immediately relate to that emotion of the person who has written it। आंखों में आंसू आ जाते हैं माउली के। बोलते इतना पिघल के कोई भक्ति कर रहा है पांडुरंगा, ये कौन लिख रहा है? यू नो हु इज राइटिंग सच एन इमोशनल अभंग फॉर यू? तो तुम आगे पढ़ो तो तुम्हें पता चले। काय करू या कर्माशी नाश होतो आयुष्याची, जन्म येऊनी या दुःख नाही पाहिले श्रीमुख। माउली को ना भर के आ जाता है, इज नॉट एबल टू रीड फर्दर। विठला के उसके पीठ पे से हाथ थपथपाते बोलते आगे पढ़ो तो पता चले। लाले पूर्वसी आमचे म्हणे जनी प्रीतिसाचे, काय करू मी तो सांगा तुम्ही पांडुरंगा। माउली पूछते हैं, जनी कौन है? अभी पता चलता है मुझे, मैं लिख रहा हूं मगर मैं नहीं लिख रहा हूं, मतलब तुम सिर्फ लिख रहे हो, कोई और गा रहा है। ये कौन है जनी? कौन तुम्हारे लिए इतनी पिघल पिघल के भक्ति करके तुम्हारे लिए इतना घुट रही है? कौन है ये जनी? तो विठल महाराज बोलते हैं, तुम नामदेव महाराज के घर गए हो? तो बोलते हैं हाँ हाँ, अभी तुम्हारा दर्शन होने के बाद वहीं पे जाऊंगा, कितने बार गया हूँ। कौन है उनके घर पे? तो बोलते हैं उनके पिताजी हैं, माँ हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, उनके घर पे एक नौकरानी भी है, पता है? हाँ हाँ पता है। एक शांत सी एक छोटी सी लड़की, सिर्फ पैर धोने के लिए पानी देगी या खाना परोसने के लिए बाहर आएगी, लेकिन कभी अपने काम में लगी रहती है। एक शांत सी एक छोटी सी बच्ची है, बराबर है। तो उसका नाम जनी है। बोलते वो अनपढ़ लड़की इतना भक्ति कर रही है तुम पे विठला? हाँ मेरी जनी अनपढ़ है, उसके लिए कौन अभंग लिखेगा? विठला सेज। बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए जब निवृत्तिनाथ गाते हैं तो सोपान लिख देता है, तुम गाते हो तो सच्चिदानंद लिख देते हैं, सोपान गाता है तो मुक्ताई के लिए चांददेव, नामदेव महाराज के लिए परसा भागवतर, अपने लिए सबके लिए एक एक सेक्रेटरी तुम लोगों ने रख लिया है। मेरी जनी के लिए कौन गाएगा? वो तो खुल के गाती भी नहीं है, मन ही मन गाती है, लोगों को पता भी नहीं है वो गा रही है। मैं नहीं लिखूंगा तो कौन लिखेगा मेरी जनी के लिए? बहुत प्यारी बच्ची है, मेरे लिए इतना तड़प रही है।
माऊली महाराज को ना भर के आ जाता है, वो नमस्कार करते हैं, बोलते हैं विठला इतना करुणा है तुम्हारे मन में, तुम खुद एक अपने अपने भक्त के लिए गाना अभंग लिखते बैठे हो। फिर आंख पहुंच के बोलते इतना तड़प रही है विठला, तुमने उसको दर्शन दिया है कि नहीं दिया है? इज व्हाट ही आस्क्स। बोलते नहीं नहीं तुमको पता नहीं है, मैं रोज उसे दर्शन देता हूं। माऊली बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, इसी रूप में तुम दर्शन देते हो क्या? तुम्हें ना आदत है कभी सांप कभी बिच्छू कभी गाय बन के जाने का, ओके? ऐसा सब नहीं, तुम इस रूप में, जिस रूप में वो तुम्हारे लिए तड़प रही है, वो सुंदर आंखें वो सुंदर चेहरा देखने के लिए जो तड़प रही है, इस रूप में गए हो क्या? बोलते हैं नहीं नहीं गया नहीं हूं मैं, अभी जाने वाला हूं। तो ही सेज नहीं, तुम्हें प्रॉमिस करना है विठला, इतना छोटी सी बच्ची तुम्हारे लिए तड़प तड़प के इतना सुंदर अभंग लिख रही है, वो भक्ति के स्वरूप तुम्हें दर्शन देना ही है। तो विठल बोलते हैं हाँ मैं दर्शन देने वाला हूं। माऊली बोलते हैं प्रॉमिस करो इसी रूप में जाओगे और दर्शन दोगे उस बच्ची के लिए। बोलते हैं मैं इसी रूप में जाके दर्शन देने वाला हूं। तो बोलते कभी जाने वाले हो? सिर्फ जाने वाला हूं, वो पुनेरी लोग बोलते हैं ना आओ कभी खाने के लिए, वैसे नहीं, गिव मी द डेट एंड टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू गो एंड गिव दर्शन। सो विठल महाराज बोलते हैं मैं कल ही जाने वाला हूं उसको दर्शन देने के लिए। तो माऊली बहुत खुश हो जाते हैं। माऊली बोलते हैं उसको तुम जाके दर्शन देने वाले हो, अचानक मत दे देना, उसको जाके पहले किसी को बताना चाहिए कि उसको दर्शन मिलने वाला है, ताकि अगर उसको तैयारी करना है तो वो तैयारी कर पाएगी। अचानक आएंगे तो यू नो यू वो दैट एक्साइटमेंट में आई डोंट नो वेदर शी विल बी एबल टू एंजॉय। तो विठल बोलते हैं कि ठीक है ना ज्ञानदेवा, तुम ही जाके बता दो, अभी जा ही रहे हो ना नामदेव महाराज के घर पे, तुम ही जाके बता दो। तो बहुत खुश हो जाते हैं कि एक सच्चे भक्त को ऊपर दर्शन होके अनुग्रह होने वाला है, और वो न्यूज मुझे देने का भाग्य मिला है। एक बार क्या होता है ना, तो ये वो जो एक्साइटमेंट होता है, यू नो, जस्ट टू गिव यू एन क्विक एक साइड स्टोरी। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ ना एक बार उनको एक सेट ऑफ डिवोटीज कम तपोवन से एर्नाकुलम कोचिन के पास में, वहाँ पे कुछ काम चालू था या कुछ था, तो उनको वहाँ पे बुलाने के लिए उनको लेके जाने के लिए आते हैं। तो 2-4 गाड़ी आते हैं और स्वामीगढ़ को लेके जाते हैं। तो स्वामीगढ़ का ना काफी जगह पे डिवोटीज थे, कोचिन में भी डिवोटीज थे, तई कार्तिकेय एंड देन चित्रा पूर्णिमा का सब फंक्शंस होते थे। ओके, तई कार्तिकेय चित्रा पूर्णिमा वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन ज्ञानानंद स्वामीगढ़ स्टोरी। हमने बहुत विस्तार में उनका कहानी का आनंद उठाया है, सो आई नॉट गेट इनटू डिटेल्स। केरला में भी उनके डिवोटीज थे, बहुत सालों से थे। वहां पे ना जब कोई फंक्शन होता था या किसी का कई कार्तिकेय होता है या चित्रा पूर्णिमा होगा, तो एक पैम्पलेट प्रिंट करते हैं, राइट? उसमें ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के फोटो लगाएंगे, फिर वो डिटेल्स ऑफ दैट प्रोग्राम, यू नो, देयर विल बी सम प्रवचन, देयर विल बी सम भजन, ऐसे करके वो पैम्पलेट होता था टू गिव द इंफॉर्मेशन एंड दैट इज टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। वो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, लोगों के घर पे भी जाएगा और नीचे रोड में भी गिरेगा। वहां पे एक लकड़हार, देयर इज अ वुड कटर, कोची के बाजू में एक फॉरेस्ट में देयर इज अ वुड कटर, वो उसके हाथ में वो पैम्पलेट गिरा हुआ मिलता है। वो देखता है, वो फोटो देखता है, उसको बहुत अंदर से अच्छा लगता है, ही फील्स वेरी गुड अबाउट इट। वो फोटो देख के, वो हंसता हुआ चेहरा, वो ऐसा राउंड चेहरा, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ का देखा है, तुम लोगों ने देखा है, राइट? वो ऐसा ही विल अट्रैक्ट यू फ्रॉम द मोमेंट यू सी हिम, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड ही विल बी। तो देख के उनको लगता है ये कोई बड़े संत है, इनको देख के आकर्षित हो रहा हूं मैं। तो वो ऐसे कार्ड पेपर में चिपका के ना, ऐसा काट के कार्ड पेपर में चिपका के अपने घर पे एक जगह पे उन्होंने ऐसा टांग लिया था, सालों ही इज डन पूजा। एक लकड़हार क्या पूजा करेगा? रोज सुबह उठेगा, नहाएगा, नमस्कार करेगा, दूध का नैवेद्य देता था, अपने काम पे चला जाता था, आता था, नमस्कार करता था, कुछ और नैवेद्य देता था, खाना खा के सो जाता था। बट मन ही मन में ना उन्होंने ज्ञानानंद स्वामी को अपना गुरु, अपना देव मान लिया था। सालों ये करते आ रहे हैं। एक दिन पिघल पिघल के रो रहे हैं, स्वामी आप, मुझे कौन है वो भी पता नहीं है, आपको देखते ही मैं आकर्षित हो गया, आप कौन है मुझे पता नहीं है, आप जीवित हैं वो भी नहीं पता, आपका सिर्फ फोटो मेरे पास है, आपका मुझे दर्शन कभी मिलेगा कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता स्वामीगढ़, ये जीवन व्यर्थ ना हो जाए, कभी तो मुझे दर्शन दीजिए। हाथ में ऐसे दूध को पकड़ के नैवेद्य करते ये मन में रो रहे हैं। बाजू वाले हाईवे से ना स्वामीगढ़ का वो पूरा, वो जो 3-4 गाड़ियां जा रहे हैं, स्वामीगढ़ गाड़ी रोक देते हैं, रोक के फटाफट चलना चालू कर देते हैं इनटू द फॉरेस्ट। ही वॉक्स इनटू द फॉरेस्ट, बाकी सब दे ऑल आर कैचिंग अप विद स्वामीगढ़ कि स्वामीगढ़ को क्या हुआ, बीच में कहां फॉरेस्ट के अंदर चले गए। ही वॉक्स स्ट्रेट इनटू द हट। वो दूध इधर दिया जाए,
Yes. That person, he says, he was वो you could just imagine the excitement that he would have, right? वो फोटो में जो सालों से उन्होंने पूजा किया हुआ साक्षात स्वामीगण उधर खड़े हैं, वो दूध इधर दिया जाए, पी जाते हैं, एंड ही डज आशीर्वाद. दिस इस ऐसे तप से बड़ा हुआ जो when you are so into something, और वो अगर पूरा हो जाए ना, वो एक्साइटमेंट का कोई सीमा नहीं होता है, राइट? तो माउली को ही वांटेड टू गिव दैट न्यूज टू जनी कि इतने दिन से तुम जिस आराध्य देव की तुम पूजा कर रहे हो, जिसके लिए पिघल पिघल के रो रही हो, वो खुद तुम्हें दर्शन देने के लिए आने वाला है, और वो न्यूज देने का भाग्य माउली को मिला है. तो इस आनंद में वो आते हैं अंदर नामदेव महाराज के घर पे. तो आते ही नामदेव महाराज बोलते हैं, आइए आइए ज्ञानदेवा आइए. ज्ञानेश्वर इज नामदेव महाराज गुरु के गुरु. नामदेव महाराज ज्ञानेश्वर महाराज के डिसाइपल वाज खेचर, राइट? विशोबा खेचर्स डिसाइपल इज नामदेव महाराज. नामदेव महाराज डिसाइपल इज जनाबाई. ओके, दैट इज द रिलेशनशिप. गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु. तो ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव महाराज के घर पे आते हैं, तो आइए आइए करके दे कॉल हिम इनसाइड. वो बोलते हैं, नामदेव महाराज ये सब ठीक है, जनी किधर है? तो नामदेव महाराज बोलते हैं, जनी तो पीछे रहेगी, काम करती होगी. तो बोलते मुझे नहीं, मैं कहीं बैठने वगैरह नहीं वाला हूँ, मुझे पहले जनी से ही मिलना है. तो बोलते अच्छा ठीक है, तो जाइए पीछे. तो ज्ञानेश्वर महाराज स्टार्ट्स वॉकिंग टू द बैक ऑफ द हाउस. एज ही एंटर्स द बैकयार्ड ना, ही स्टार्ट्स हियरिंग द क्वारल. ओके, दो औरतों के बीच में कुछ झगड़ा चालू है. तो आके देखते हैं, जनी इज फाइटिंग विद द नेबर की औरत. ओके, एंड शी इज सेइंग, ये गोबर के उपले ना मेरे हैं, मुझे वापस दे दो. तो ज्ञानेश्वर महाराज इज सरप्राइज. ये विठल ने बोला, जनी बहुत भक्ति कर रही है, मनी मन रो रही है, शी इज वांटिंग टू हैव दर्शन, ये गोबर के उपले के क्यों झगड़ा कर रही है? आई डोंट नो वेदर आई हर्ड द राइट न्यूज. ऐसे करके ना ही बिकम्स डाउटफुल. वो फिर भी आते हैं वहां पे, बोलते हैं, जनी क्या हुआ, झगड़ा क्यों कर रही हो? बोलते वो घूम के देखती है, ज्ञानेश्वर आए हैं, तो नमस्कार करती है. दादा बुलाती थी. ओके, दादा मीन्स एल्डर ब्रदर इन मराठी. दादा आप आए, नमस्कार करती है. देखो ना, ये औरत ना मेरी गोबर के उपले ले चुकी, शी इज टेकन माय गोबर के उपले. तो बोलते गोबर के उपले में मेरे और तेरा क्या, और कैसे पता चलेगा कौन किसका है? दे ऑल लुक सेम, राइट? उस पे नाम थोड़ी लिखा होता है किसी का. इट इज ओके जनी, ठीक है, तुम और बना लो ना, गोबर के उपले में बना, में क्या प्रॉब्लम है? बोलते ऐसा नहीं है दादा, ये मेरे हैं, उसने लिया है, आप तुमको बोलना पड़ेगा कि उसको देना है. और वो बोल रही है, नहीं ये मेरा है, तुम्हारा नाम थोड़ी लिखा है. तो इनका दोनों का झगड़ा चालू है. तो माउली बोलते हैं, ठीक है, तुमको क्या करना है अभी? तो जनी बोलती है कि वो गोबर के उपले दे दो, मैं अभी के अभी साबित करती हूँ कि मेरा है कि नहीं. तो बोलते गोबर के उपले में ये क्या साबित करने वाले? तो बोलते ठीक है ना, दे दो ना, तुमको भी क्या प्रॉब्लम है, 4-5 दे दो, लेट अस सी व्हाट शी डज. तो लेके ना ऐसे हाथ पे मारती है, तो टूट जाता है. तो माउली बोलते हैं, तो इसमें क्या साबित हो गया? गोबर के उपले मारोगे तो टूटेगा. बोलते हैं नहीं रुकिए, और एक लेके मारती है, वो भी टूटता है. तीसरा लेके मारती है, विठल करके नाम आता है. तो माउली ना रियलाइजेस द अमाउंट ऑफ ग्रेटनेस ऑफ जनी. बोलते हैं दादा, मैं जब गोबर की उपले भी बनाती हूँ ना, तो गोबर के उपले भी बनाती हूँ, तो विठल का नाम लेके ही मैं बनाती हूँ. गोबर के उपले जब बनाती हूँ तभी विठल के नाम ही लेके बनाती हूँ. तो वो पूरा नाम ना वो गोबर के उपले में भी चढ़ गया है, राइट? और सिर्फ यही मैं इस्तेमाल करती हूँ ईंधन के तौर पे, ताकि जो खाना बने वो प्रसाद बन जाए, विठल का प्रसाद बन जाए. तो दैट इज द टाइम माउली रियलाइजेस द ग्रेटनेस ऑफ जनी. बोलते हैं ठीक है जनी, आओ, मुझे ना तुम्हें एक अभंग सुनाना है. ये अभंग किसने लिखा है मुझे बताओगे क्या? बहुत सुंदर और बहुत इमोशनल ऐसा अभंग है. मैं जब सुना मेरे तो आंख भर आ गए. तुम किसने लिखा है मुझे बताओगे? तो जनी बोलती है, दादा मैं तो एक अनपढ़ हूं, मैं क्या बताऊं, आप नामदेव महाराज से पूछ लीजिए, गुरु महाराज से पूछ लीजिए, या चोका मेड़ा से पूछ लीजिए, है बाहर बैठे हैं शायद. तो बोलते हैं नहीं तुम बताओ मुझे ये अभंग किसने लिखा है. तो बैठो. तो बैठते हैं, एक घड़े को ऐसे उल्टा करके उसके ऊपर माउली बैठते हैं, उसके सामने अब जनी बैठती है. एंड माउली सिंग्स, काय करू मी तो सांगा तुम्ही पांडुरंगा, तुझे पाय रूप डोळा नाही देखिला गोपाळा. ये सुनते ही ना जनी शर्मा जाती है. शी सडनली बिकम्स वेरी शाय. वो अपना सिर नीचे डाल देती है.
माऊली पूछते क्या हुआ, आगे गाऊं ना? शी डजंट इवन रेस्पॉन्ड. तो बोलते काय करू या कर्माशी नाश हो तो आयुष्याची, जन्म येऊनी या दुःख नाही पाहिले श्रीमुख. ये सुनते ही ना माऊली बोलते हैं आगे गाऊं. तो नमस्कार कर देते हैं, जनी नमस्कार कर देते हैं. वो बोलते हैं माऊली आपको पता चल गया क्या? तो माऊली बोलते हैं मुझे पता चलता तो भी ठीक, ये तो विट्ठल को पता चल गया है, विट्ठल ने मुझे बताया, विट्ठल तुम्हारे लिए ये वाला लिख रहा था, अभंग आप तुम्हारे लिए लिख रहा था जनी. तो ये सुनते ही जनी ना रो देते हैं, बोलते मेरी भक्ति पहुंच गई क्या विट्ठल तक, मुझे दर्शन देंगे क्या? मेरी भक्ति, मुझे लगा मैं मेरे मन में कर रही हूँ उनके तरफ, उनके साथ तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा मुझे नहीं पता था. ऐसे करके रो के ना गिर जाती है माऊली के पैरों पे. थोड़ी देर के बाद उठ के बोलती है और थोड़ा गुस्से में बोलती है ये सब ठीक है लिख रहे थे वगैरह, ये अभंग का अर्थ पता भी चला उनको विट्ठल को. तो माऊली हंस देते हैं. माऊली बोलते हैं डरो मत जनी, तुम्हारे मन में जो है मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है विट्ठल से, और ये समझ लो जनी तुम्हारे लिए आज दर्शन देने के लिए आने वाले हैं. तो जनी इज लाइक मैं क्या करूं, यू नो, यू कैन जस्ट इमेजिन हर एक्साइटमेंट. शी इज अ गर्ल. उस जमाने में लड़कियों को ज्यादा एक्सप्रेस करना, जोर से हंसना, वो भी अलाउड नहीं था. दूसरा शी वॉज ऑल्सो नौकरानी, बट शी हैड टू एक्सप्रेस. ये एक दर्शन जो होने वाला है वो उसके लिए विट्ठल ने रिकग्नाइज कर लिया है, उसका जो सालों जो उसने जो भक्ति की है उसको रिकग्निशन भी मिल गया है, और वो विट्ठल इज गोइंग टू कम एंड गिव दैट दर्शन. वो अपने रूम में जाती है एंड शी डजंट नो व्हाट टू डू. शी इज क्राइंग, शी इज हैप्पी, शी इज अनहैप्पी दैट कैसे मैं उसका मैं आवभगत करूं, घर भी मेरा नहीं है. मिक्स्ड फीलिंग्स दैट आर कंप्लीटली एनगल्फ्ड जनी. ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव महाराज से मिलते हैं और बोलते हैं जनी को दर्शन देने के लिए विट्ठल इज गोइंग टू कम टू योर हाउस. शेज आरती, शयन आरती होने के बाद काकड़ आरती होने तक, मतलब सोने का जो आरती है 10-11 बजे होता है, काकड़ आरती हैपन्स अराउंड 4 o'clock. विट्ठल को तभी टाइम है ना, बाकी टाइम तो खड़े हैं हाथ पे कमर पे हाथ रखे, राइट. ही कैन ओनली कम इन दिस पीरियड. बोलते आने वाले हैं, और ये वाला जो विजिट है इट इज ओनली फॉर जनी. तो नामदेव महाराज भी खुश हो जाते हैं. नामदेव महाराज बोलते हैं आज का जो भी खाना है वो पूरा जनी बनाएगी. ओके, सो ही इंश्योर्स दैट ही इज कंप्लीटली, इट्स ओनली फॉर दैट होल थिंग इज ओनली फॉर जनी. उस दिन वहां पे कबीर महाराज भी हैं. Kabir Maharaj was known, I'll just quickly cover this thing. Kabir Maharaj was known for निर्गुणी भक्ति, right? निर्गुणी भजन और निर्गुणी भक्ति में प्रचलित थे. रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, छाया, ऐसा उनका एक भजन है ना. रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, छाया भी नहीं, ऐसे राम को पूछते थे. माऊली और नामदेव महाराज का एक काशी यात्रा है, नामदेव महाराज के चरित्र में आएगा, एक बहुत विस्तार में है. वो काशी यात्रा करते हैं, कबीर महाराज के घर पे जाके रहते हैं, उनके यहाँ पे खाना भी खाते हैं. उसी वक्त मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कबीर महाराज का जो भक्ति है वो एक अलग किस्म का भक्ति है. एक ऐसा संदर्भ में वो अपना बेटे का गला काट देते हैं, ओके, और वो बॉडी टंगा हुआ रहता है चौराहे पे. माऊली और नामदेव आके उसको वापस जीवित करते हैं. ऐसा एक स्टोरी है, वो चरित्र में लीला है, वो मैं कभी कवर करूंगा. तो माऊली जाते जाते बोलते हैं तुम जिस भगवान को रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, छाया बोल रहे हो, वो रूप के साथ, रंग के साथ, वर्ण के साथ, छाया के साथ कमर में हाथ धरे खड़ा है. आओ कभी पंढरपुर देख के जाओ. इज व्हाट ही इनवाइट्स कबीर महाराज. तो कबीर महाराज भी आए हैं ऐसे संदर्भ में. कबीर महाराज भी उधर आए हैं. एक्चुअली उनके बेटे कमलदास का तो अधिष्ठान, मतलब उनके जो समाधि है वो पंढरपुर में है, वो वहीं पे रह जाते हैं. ओके, कबीर महाराज गोज बैक बट हिज सन स्टेज इन पंढरपुर. So these are parts of the story. Not many people would know. I'll come to those stories when we are covering Namdev Maharaj's story. तो सारा उस दिन you can just imagine, right? हमारे घर पे अगर मेहमान आते हैं तो अनवांटेड सामान कपाट के अंदर घुसेड़ के बंद कर दो, घर साफ करो. भगवान खुद आ रहे हैं. You can just imagine the excitement Jani would be having. And उस दिन का प्रोजेक्ट टीम लीडर नामदेव महाराज was declared as Jani. So everybody is only helping Jani, right? So Jani is involved in cooking, she's involved in grinding, she's involved in cleaning, she's all excited. शयन आरती हो जाता है, विट्ठल आ जाते हैं, राइट. विट्ठल आते ही घर पे ही 15 लोग नामदेव महाराज के, उसके अलावा देयर आर आल्सो लॉट ऑफ डिवोटीज हु आर स्टैंडिंग.
तो सब लोग विठल महाराज को देखने के लिए ऐसे सामने खड़े हो जाते हैं। जनी एक नौकरानी है, मैं एक लड़की हूं, मैं कैसे सामने आऊं करके दूर से ना ऐसे लोगों के गैप में ना वो देख रही है। देखते ही आंख में आंसू आ जाते हैं, देख भी नहीं पा रही है। ओके, हर आईज आर ऑल फिल्ड विद वाटर, शी इज नॉट एबल टू इवन सी। नामदेव महाराज आवाज देते हैं, जनी विठल आए हैं, पानी लेके आ जाओ उनके पैर धोने के लिए। तो पानी लेके आती है एंड मनी मन में सोच रही है, एंड शी इज नॉट इवन एबल टू लुक एट, शी इज बिकॉज शी इज अ सर्वेंट, वो अपने घर वालों को भी सर उठा के नहीं देखती थी, विठल को क्या देखेगी, राइट? वो भय, वो भक्ति, वो एक्साइटमेंट, वो आंखों में आंसू, वो शी इज नॉट इवन एबल टू सी विठल, आंखों से आंख भी मिला नहीं पा रही है, वो सिर्फ नीचे देख रही है, पानी, चंद्रभागा का पानी लेके उसके पैर को धो रही है और मनी मन सोच रही है, जिस चरणों से गंगा बहती है उस चरणों में मेरी गंगा को अर्पण करती हूं, चंद्रभागा के पानी से वो धोती है। अपना जो वो घाघरा चोली जब डालते हैं ना तो ऊपर से एक दुपट्टा भी कभी कभी लेते हैं, तो दुपट्टे से वो उसके पैर को पोंछते हैं। मनी मन वो ना माऊली विठल को वेलकम करती है। घर उसका नहीं है, राइट? वो जोर से बोल भी नहीं सकती कि मेरे घर पे आओ विठ्ठला करके भी बोल नहीं सकते। वो मनी मन में गाती है, ये ग विठाई माझे पंढरीचे आई, पंढरपूर के माँ हो, भीमा आणि चंद्रभागा तुझे चरणीच्या गंगा, मैं तुम्हारे यहाँ से गंगा निकलता है, मैं मेरे गांव की गंगा को तुम्हारे चरण में डालती हूँ, माझा रंग तुझे गुणी म्हणे नामयाची जनी, ऐसी करके वो शी इज वेलकमिंग बट नॉट सिंगिंग लाउडली, शी इज डूइंग इट इन हर ओन माइंड। वो पैर सब पहुंच के रख देती है, फिर अंदर दौड़े दौड़े अंदर चली जाती है, दूर से देख रही है। विठला एज ऑलवेज loves all the attention, right? वो सबसे मिलते हैं, is chatting with everybody, and then नामदेव महाराज के ये जो एक्साइटमेंट है ना, दिस एक्साइटमेंट के लिए भी एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। विदुर महाराज के घर पे ना कृष्ण जाके रहते हैं, तो होता क्या है, महाभारत में ऑल ऑफ अस आर अवेयर द वॉर इज इमिनेंट, वॉर होने वाला है, ये पता चल जाता है सबको। एज अ लास्ट मोमेंट एफर्ट युधिष्ठिर बोलते हैं नहीं, हमें फिर भी पीस टॉक ओपन करना चाहिए, विल ट्राई अ लास्ट अटेम्प्ट टू हैव समबडी गो देयर एंड टॉक टू दुर्योधन। अभी भी शांति स्वरूप होता है तो हो जाने दो, सिर्फ 5 गांव मांग लेंगे, यू नो, दैट इज द टाइम दुर्योधन सेन मैं सुई के नोक के इतना भी लैंड नहीं दूंगा, फेमस। तो कृष्णा गोज एज अ डिप्लोमैट, ही गोज एज अ फॉर्मल गेस्ट, राइट? धृतराष्ट्र से मिलते हैं और पूछते हैं 5 गांव के लिए, वो बोल देता है नोक भर का भी नहीं मिलेगा। तो उस दिन रात को ठहरना होता है, तो कृष्ण को बोलते हैं कि यू आर अ फॉर्मल गेस्ट, तुमको हम राजभवन में देंगे करके। कृष्णा डजंट स्टे एट धृतराष्ट्र's प्लेस, नॉर दुर्योधन, नो कर्णा, नो भीष्मा, नो द्रोणा। विदुर कोने में खड़े हैं, वो विदुर के पास मुड़ के देखते हैं, विदुरा मैं तुम्हारे घर पे आके रहने वाला हूँ। विदुरा इज अ साइलेंट भक्त, इज अ शांत भक्त करने वाले थे इन महाभारत, इज नोन फॉर हिज भक्ति। उनके नीति और उनके धर्म के बारे में तो क्या कहना, प्रवचनकार मैंने सुना है विदुर नीति पे 8 सेशंस ऑफ 2 hours, 16 hours ऑफ जस्ट विदुर नीति, फॉरगेट महाभारत, विदुर नीति पे 16 hours ऑफ सेशंस करते हैं एक्सपर्ट प्रवचनकार लोग। ओके, ऐसे विदुर का नीति वाज बेंचमार्क। ऐसे एक भक्त के घर पे जाते हैं, विदुर का ही इज नॉट वेरी रिच, राइट? उनका जो भी कुटिया थी, कृष्ण कौन द्वारकाधीश आ गए हैं, वो ना क्या कर रहे हैं, फल को छिलका निकाल के फल को नीचे फेंक के ना चिल्का दे रहे हैं। इन दैट एक्साइटमेंट दैट भगवान आ गए उनके घर पे, फल को नीचे फेंक के चिल्का दे रहे हैं। कृष्ण भी देखो वो चिल्का खा रहे हैं। ओके, तो अगर विदुर जैसे एक समंजस, एक ऑलमोस्ट एक ज्ञानी का अगर ये हाल हो सकता है भगवान के आने के बाद, तो यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट, यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट जनी का हालत करेगा, राइट? तो विठल कीप्स हिज हैंड ऑन नामदेवा शोल्डर एंड सेज, नामदेवा मैं ना बहुत भूखा हूँ, ये लोग खिलाते हैं नैवेद्य के नाम पे, सारा उठा के वापस लेके जाते हैं, मेरे को ना बहुत भूख लगा है, क्या किया है तुम लोगों ने? तो बोलते हैं चलो चलो आओ सब लोग बैठ के खाएंगे। तो नामदेव महाराज बोलते हैं आज ना सहभोजन होगा, आज सब लोग मिलके इकट्ठा मिलके खाएंगे, एवरीबडी, सो लेडीज विल सर्व एंड देन दे विल ईट लेटर। आज वैसा नहीं होगा, आज सब लोग इकट्ठा मिलके खाएंगे। तो गोणाई पूछते हैं, नामदेव महाराज की माँ पूछती है गोणाई तो परोसेगा कौन? तो नामदेव महाराज बोलते हैं आज सबके लिए जनी विल सर्व। ओके,
तो जनी के मन में ना फर्स्ट थॉट दैट कम्स, ओ मुझे लगा मुझे भी बैठने मिलेगा विट्ठल महाराज के साथ खाने के लिए, बट ठीक है मैं नौकरानी हूँ, मुझे क्यों बिठाएंगे, ऐसे करके उसके मन में आता है। बट मुझे परोसने का भाग्य मिल रहा है, इट्स ओके, आई मीन मेरे लिए आए हैं, दर्शन दे रहे हैं, यही ज्यादा है। और मुझे खाना बनाने का भी मौका मिला है, गुरु महाराज ने दिया है, मुझे खाना परोसने का भी मौका दिया है, इससे मैं और ज्यादा क्या मांग सकती हूँ, यही मेरे लिए ज्यादा है। ऐसे करके ना शी स्टार्ट्स सर्विंग। इस दौरान ना नामदेव महाराज बोलते हैं आज का खाना सब जनी ने ही किया है। विट्ठल इज नॉट इवन एक्नॉलेजिंग हर प्रेजेंस। पैर धोते वक्त वो बोलती है ये जनी है, हाँ, ही डजंट इवन लुक एट हर। खाना इस सारा आज उसी ने बनाया है, या आज पूरा जो सेट किया है हाउस जनी ने किया है। नामदेव महाराज से विट्ठल डजंट इवन एक्नॉलेज। ये मन में ना जनी को ना ऐसा दुख होता है, मैं देख नहीं पा रही हूँ उनका तेज, मेरे आंख से पानी आ रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, अलग बात है, मैं सिर उठा के देख भी नहीं सकती हूँ, नौकरानी हूँ। एक छोटा सा सवाल, जनी कैसे हो, ये तो पूछ ही सकते हैं विट्ठल। मौली दादा ने बोला कि दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, मेरे लिए ही शायद आए हैं, मेरे बारे में पूछ लिया तो क्या हुआ, इतना भी नहीं कर सकते विट्ठल। ऐसे मन में एक दुख है। एक साइड में ऐसे भी लग रहा है कि इतना तो मुझे मिला, पैर धोने का भाग्य मिला, खाना परोसने का भाग्य मिल रहा है, ये दूसरे साइड पे हैप्पीनेस भी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स दैट आर क्लैशिंग इन जनीज माइंड। सबके लिए खाना परोस देते हैं, खाना चालू कर देते हैं। विट्ठल 2 निवाला लेते हैं, दाल राइस जो भी बनाया है 2 निवाला लेके सबको बोल रहे हैं चलो खाना खाओ, खाना खाओ, अरे नामदेवा तुम और एक थोड़ा खाओ, गुणाई माँ तुम भी कुछ खाओ, ऐसे करके सबको ही इज फोर्सिंग एवरीबडी। बट खुद नहीं खाना खा रहा है, खुद कुछ दाल में राइस मिक्स कर रहे हैं, कभी सब्जी को मिक्स किया, कभी पूरी को उधर रखा, ऐसे खेल रहा है खाने के साथ, बट इज नॉट ईटिंग इट। तो गुणाई पूछ लेती है, अरे विट्ठल अभी तो बोला तुमने खाना, बहुत भूख लगा है, खाना तो खाओ। बोलते हैं नहीं माँ आज अभी भूख नहीं है। बोला अभी तो बोला खाना खाओगे करके। बोलते अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा, तुम लोग खाओ। तो सबको ही इज फोर्सिंग एवरीबडी टू ईट। वो इतना फोर्स करते हैं कि अंदर का सारा खाना खत्म हो जाता है। सारा खाना खत्म हो गया, सबका खाना हो गया, सब लोग उठ जाते हैं। गुणाई आके बोलते हैं कि जनी अंदर का खाना तो सब खत्म हो गया, ये सब क्लीन कर लो, और जो विट्ठल ने छोड़ा हुआ है, विट्ठल का प्रसाद ही है, वो अंदर तुम्हारे कमरे में जाके खाना खा लो। तो जनी के लिए एक छोटा सा पीछे एक आउटहाउस जैसा था, विच वॉज गिवन फॉर जनी। तो शी थिंक्स ठीक है, एक साथ मिलके खाना का तो भाग्य नहीं मिला, ठीक है, उसने छुआ, विट्ठल ने छुआ हुआ प्रसाद समझ के तो खाना मिलेगा, एटलीस्ट दैट मच भाग्य। शी सेज दैट इटसेल्फ इज सच अ ग्रेट भाग्य, किसको मिला है इतना भाग्य। तो वो लेके अंदर जाके रख देती है। इतने में गुणाई गिव्स अ शाउट आउट, बोले जनी विट्ठल को सोना है तो उसके लिए गद्दी बना दो। तो शी कम्स, वो हे होता है ना, घास, सूखा हुआ घास, राइट, उसको बना के ऊपर एक चद्दर वगैरह ओढ़ के उसको वहां पे बना देती है। विट्ठल महाराज, विट्ठल स्लीप्स ऑन दैट, ही सेज आहा ये तो शेषनाग से भी ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके, ही स्लीप्स एंड देन ही सेज नामदेवा तुम भी आ जाओ, बहुत कंफर्टेबल है। एंड देन जनी अगेन गोज इनटू अ रूम so that she can now sit and eat, because सबका हो गया, उस सुबह से खाई नहीं है, ये रात को आता है ना, ये विट्ठल तो रात का निशाचर है, तो अभी रात हो गया है, she is now hungry. Suddenly विट्ठल says मैं ना युगों से खड़ा हूँ, कोई मेरे लिए बोलता भी नहीं है, बैठो थोड़ा देर, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पैर कोई दबा दे तो अच्छा लगेगा। तो नामदेव महाराज knows what विट्ठल is doing, right? ये सब उनको पता है क्या चोर कर रहा है। तो जनी को बुला लेते हैं, बोलते हैं जनी आ जाओ, विट्ठल महाराज, विट्ठल के ना पैर दर्द हो रहे हैं, विट्ठल के पैर दबा दो। जो वैकुंठ में लक्ष्मी माँ को जो भाग्य मिला, वो भूलोक में किसको मिला, जनी को मिला, राइट। पैरों में बैठ के पैरों को दबाने का जो भाग्य मिला, शी इज हैप्पी, जनी इज वेरी हैप्पी कि मैंने बनाया हुआ गद्दी, जो शेषनाग पे सोते थे मैंने बनाया हुआ गद्दी पे सो रहे हैं, जो लक्ष्मी माँ को भाग्य मिला वो मुझे मिल रहा है। फिर भी विट्ठल इज नॉट एक्नॉलेजिंग हर, वो तो उसके पास देख भी नहीं रहा है। ओके, नामदेव महाराज कितने दयालु हैं, उनका बेटियों को नहीं दिया, बहुओं को नहीं दिया, बेटी को नहीं दिया, वो भाग मुझे दे रहे हैं। ये चरणों को हाथ लगाने का भाग्य मुझे दे दिया नामदेव महाराज ने। मीराबाई कृष्ण के चरणों पे उन्होंने एक भजन गाया है कि उसका क्या महत्व है। चरण रज महिमा मैं जानी, मीरा बोलती है मैं जानती हूं ये चरण रज का क्या महिमा है। यही चरण से गंगा प्रकटी भागीरथ कुल थारी। ये ऐसे चरण हैं जहां से गंगा बहती है। विष्णु के चरण से गंगा बह के ब्रह्मा के कमंडल में जाके
शिव जी के सिर में धर के वहां से ट्रिकल होके गंगा आती है. ओके, सो गंगा टचेस ऑल द थ्री त्रिमूर्ति गॉड एंड देन कम्स टू अर्थ. रामायण जो प्रवचन करते हैं वो बोलते हैं रामा ने रघुकुल में क्यों जन्म लिया? दशरथ के लिए नहीं लिया, भगीरथ के लिए लिया. ओके, भगीरथ कुलतारी. भगीरथ एक ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने इतना धर्म किया, इतना तपस्या की, उसके फलस्वरूप राम विष्णु डिसाइडेड टू टेक बर्थ इन दैट वंश. यही चरण से गंगा प्रकटी भागीरथ कुलतारी. तारी मतलब उद्धार किया. यही चरण से विप्र सुदामा हरि कंचन धमदीनी. यही चरण को से सुदामा इतना अमीर बन गए. यही चरण से अहिल्या उद्धारी गौतम घर की पटरानी. मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल से लटपटानी. इस चरण को पकड़ लेती हूं मैं, इज व्हाट मीरा सेज. ये चरण का क्या महिमा मीरा जानती है, जनी जानती है, राइट. और फिर भी जनी हैज दैट फीलिंग कि ये सब कर रही हूं मैं, पैर भी दबाने का मिल गया, एक बार मेरे से डायरेक्टली बात कर ले, यू नो. इतना मैं उसके लिए तरस रही हूं, एक बार सिर्फ पूछ ले कैसी हो जनी. ठीक है, मेरे शायद भाग्य में इतना ही है, मेरे लिए इतना तो हो गया. मुझे दर्शन चाहिए था, इज व्हाट आई हैव बीन क्राइंग फॉर. मुझे दर्शन तो मिल गए एंड शी इज हैप्पी अबाउट इट. शी कम्स बैक टू हर रूम. अंधेरा है, दिया जला हुआ है. थोड़ा देर के बाद विट्ठल सो जाते हैं, नामदेव भी सो जाते हैं. जनी कम्स इन. अभी तो बैठ के निवांत, यू नो, शी कैन हैव हर फूड. 2 निवाला खाती है. खा के बोलती है अरे खाना तो काफी अच्छा बना है. एक बार भी मुझसे बोला नहीं अच्छा खाना है. विट्ठल महाराज जितना अभी जो भी 2 निवाला खाया रहेगा, ही डिडंट इवन अप्रिशिएट. ये इंपॉर्टेंट है. माय मदर, यू नो, एक्सेलेंट कुक. ऑल हर लाइफ शी इज कुक्ड. बट जब खाना बनने के बाद ना, शी ऑलवेज आस्क कैसे था. जो खाते हैं ना उनका ये धर्म है कि खाना अच्छा बना है ये बताना चाहिए, राइट. और खाने का कभी नुक्स निकालना नहीं चाहिए. एक्चुअली हमारे धर्म में खाने का नुक्स निकालना पाप माना जाता है. तो जो भी खाना मिला है ना उसे अच्छा ही बताना चाहिए. अच्छा, अगर खाना बाय मिस्टेक अच्छा नहीं बना है तो झूठ भी नहीं बोल सकते हैं. तो देयर इज अ जोक. अगर किसी ने खाना परोसा है ना, हम किसी के घर पे जाते हैं और खाने में नमक ही नहीं है, अभी बोलेंगे कैसे? खाना पूछे कि कैसे खाना अच्छा, ये भी बता नहीं सकते क्योंकि झूठ नहीं बोल सकते हैं. मगर खाना के निंदा भी नहीं होना चाहिए, राइट. तो क्या बोलना चाहिए? देयर इज अ जोक सेइंग दैट आहा आपके घर पे पानी का स्वाद बहुत अच्छा था. ओके, सो यू टू पॉजिटिवली पुट. दैट्स अ जोक. द फैक्ट इज दैट खाने का प्रशंसा होना चाहिए हमेशा, कितना भी एक्सपर्ट हो, यू नो. दैट्स अ बेसिक कर्टेसी. तो इतना खाया तो एक बार उसने बोला भी नहीं, यू नो. ऐसे करके वो 2 निवाला मुंह में डालती है. इतने में ना वो अंधेरे में जनी को एक आहट होती है कि शायद कमरे में कोई आ चुका है. वो शी जस्ट काइंड ऑफ टर्न्स एंड शी फाइंड्स अ शैडो एंड शी काइंड ऑफ गेट्स अप. विठल बोलता है जनी भूख लगा है, कुछ खाने को है क्या? विठल हैज एंटर्ड इनटू हर रूम, राइट. And Jani is not, she's startled, she doesn't even know how to react to this. Vitthal is not only standing in front of her, looking at her, he's also talking to her directly and there is nobody else, he's only talking to Jani. अभी इसकी मस्ती भी देखो. अब तक खाना था, खाया नहीं. खाना खत्म होने के बाद खाना है क्या मान में आ गया है. तो जनी बोल रही है विठला खाना था अब तक लेकिन अभी नहीं है. तो विठल बोलते हैं क्यों झूठ बोल रही हो जनी, वो क्या सामने पूरा पत्रावली में भरा हुआ खाना है, वो तुम अकेले खाओगी क्या? सही, ये तुम्हारा ही शेष है, तुमने ही रखा हुआ है, वो प्रसाद ही है विठला, लेकिन मैंने अभी खा के उसको झूठा कर दिया है. अभी वो प्रसाद का वो क्वालिटी नहीं रहा उसमें, वो मेरे झूठा, मैंने झूठा कर दिया है उसको. विठल सेज ये पूरा जो मैंने लीला रची ये तुम्हारा झूठा खाने के लिए मैंने किया है जनी. ऐसे करके he holds her chin like this, he gets a निवाला, उसको भराते, he feeds her और उसी झूठे हाथ से वो भी 2 निवाला खाते हैं. मुझे पंच पक्ष परमानंद मिला हुआ आनंद मिल रहा है जनी. दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर. ये सब करने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया है, यही खाने के लिए मैं आया हूं. रो देती है जनी. is you can just imagine what Jani is going through. Later on she writes this incidents in a form of an abhanga. कोणे एके दिवशी विठो गेला जनीपाशी, हळूच मागतो खायासी, काय देऊ बा मी तुसी.
हाती धरून नेला आत वाडी पंचामृत भात प्रेम सुखाचा ढेकर दिला जणी मोठे मोठे विठो द्याला. शी इज राइटिंग दिस. एक दिन क्या हुआ, विठल आ गया जनी के पास. शी इज राइटिंग सेम जो हुआ वो लिख रही है. धीरे से आके वो बोल रहा है मुझे खाना दे दो. वो बोल रही है मैं क्या दूं तुम्हें. तो बोल रहा है अंदर जाके दिखाता है वो खाना, यही पंचामृत है मेरे लिए. ऐसे करके आनंद से उसने डकार मारा, इज व्हाट शी इज राइटिंग. See, how do we know all this happened? We know all this happened because of the Abhanga. They themselves write. जैसा है वैसे के वैसे लिख देते हैं. तो ये खाना सब होने के बाद विठल बोलते हैं तुम बहुत अभंग गा रहे हो, मन ही मन में गा रहे हो, अभी मुझे बैठ के सुनाओ, कुछ तुम गा के सुनाओ. अभी सोने वाले हो क्या. बोलते नहीं, अभी तो कल के काम पे लग जाना है, कल भी काफी कुछ काम है तो अभी काम पे लगना है. तो विठल महाराज बोलते हैं ठीक है चलो मैं भी तुमको मदद करता हूँ. तो जनी बोलती है नहीं, आप द्वारकाधीश हैं, आप भगवान हैं, आप कैसे मदद कर सकते हैं. तो विठल हंस के बोलते हैं क्यों, अब तक तुम अकेली काम कर रही थी क्या, वो लड़की कहाँ गई छोटी सी. तो जनी बोलती है हाँ एक लड़की तो आती थी, रंगम्मा आती थी मदद करने के लिए, 2 दिन से नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हुआ, उसके घर पे कुछ हुआ रहेगा. तो विठल हंसते हंसते बोलते हैं रंगम्मा कोई और नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही आ रहा था तुम्हारे लिए. रो देती है. वो बोलती है नमस्कार करके बोलती है वो पानी भरने का, उपले बनाने का, आटा पीसने का विठला तुमने किया इतना दिन से मदद मेरे लिए. वो इमिजिएटली शी स्टार्ट सिंगिंग एन अभंग. शी सेज आता पुरे हा संसार कुठे फेडू हा उपकार सांडुनिया थोरपण करी दळण कांडण नारी रूप होऊनी हरी माझे नाणे दुणे करी राणा जाये वेची शेणी शेखी वाहे घरी पाणी ठाव मागे पाया पाशी म्हणे नामयाची दासी. बोले मैं खुद दासी हूँ, नामयाची दासी, मैं खुद एक नौकरानी हूँ. आता पूरे हा संसार, ये संसार मुझे नहीं चाहिए, अभी बस हो गया. ये क्या उपकार कर दिया विठला तुमने मुझ पर, इतना बड़े हो. सांडुनिया थोरपन, थोरपन मीन्स बड़प्पन, पूरा बड़प्पन को छोड़ के तुम क्या आटा दल रहे हो, नारी रूप लेके यहाँ पे झूठे सामान बर्तन मांज रहे हो, तुम शेण मतलब गोबर के उपले बना रहे हो मेरे लिए, ये कैसे मुझ पे उपकार कर गए तुम, नामयाची दासी, मैं एक दासी हूँ, मुझ पे क्या उपकार कर गए करके रो देते हो. बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हें मदद करता हूँ, हम एक साथ आटा पीसेंगे. तो बोलते हैं मेरा ये जो पीतांबर सब चढ़ा देते हैं, कभी सिल्क कर देते हैं, कभी कांची ये कॉटन का दे देते हैं, वो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये मैं सब निकाल के तुम जो पहन रही हो ना वो बहुत सिंपल अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट है तुम्हारा, मुझे वही दे दो. बोलते हैं मेरा तो फटा हुआ है, जगह जगह पे 500 जगह पे वो पैचेस रहेगा, नहीं मुझे वही पहनना है. तुम क्या पहन रहे हो. तो बोलते नहीं ये घाघरा छोली है, मैं क्या करूं, मेरे पास और एक ही है. तो बोलते वही मुझे दे दो. तो विठल वेयर्स दैट. ओके, विठल वेयर्स दैट एंड ही सेज दिस इज सो कंफर्टेबल, और अपना सारा कपड़ा साइड में रख देता है. जनी ना वो गेहूं लेने के लिए मूर्ति है, तो ये क्या करते हैं ना, ये विठल ना अपने दागिने सब निकाल के एक मटके में अंदर रख देता है, ऊपर अपना कपड़ा भी डाल देता है. So Jani knows that he's removed his clothes and changed, but she doesn't know that he's removed his dagina also. वो छुपा के रख देता है और बैठ के ये आटा पीस. इफ यू सीन अपना ग्रुप का जो डीपी है जनाबाई करके, अगर पिक्चर करके तुम सर्च करोगे, द मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग दैट यू विल सी इज कृष्णा हेल्पिंग जनी इन ग्राइंडिंग. वो ग्राइंड वो चक्की को पकड़ रहे हैं दोनों एंड पीस रहे हैं. वो दैट इज द मोस्ट फेमस पिक्चर ऑफ जनाबाई. तो ये पीसना चालू हो जाता है. तो जनी के मन में, वो बोला ना तुम गाते रहो अभंग, तो जनी के मन में है कि ये देखो आज ना ये चोर पकड़ा गया, इतना दिन से रंगम्मा बन के मुझे मदद कर रहा था, ये ना सबसे बड़ा चोर यही है. एंड देन शी सिंग्स, immediately she sings an abhang which is a very famous abhang, आप लोगों ने सुना होगा, धरीला पंढरीचा चोर, राइट. वो बोलती है मैंने पकड़ लिया है चोर को. ये चोर ना, इस चोर को पकड़ने के बाद हम क्या करते हैं, चोर को बांध के रखते हैं, राइट. तो जनी से कैसे बांधा है मैंने इसको, प्रेम से बांधा है. धरीला पंढरीचा चोर प्रेमे बांधुनिया डोर, वो डोर प्रेम के डोर से उसको मैंने बांध के रखा है. अच्छा, चोर को पकड़ने के बाद हम करते क्या है, हम उसको इम्प्रिजन करते हैं, राइट. हृदय बंदीवन केला आत विठ्ठल कोंडला. मैंने अपने हृदय के प्रिजन में विठ्ठल को बंद करके रख दिया है. अच्छा,
चोर को पकड़ने के बाद पहले क्या करते हैं, 3rd डिग्री, राइट, मारना होता है ना, पहले बेड़ियां डालना होता है। शब्द केली जड़ा जड़ी पाई विठ्ठलाची बेड़ी, मेरे शब्दों से मैंने उसके बेड़ी, मैं उसको बेड़ी में जकड़ लिया है। सोहम शब्द नाद केले विठ्ठल काकुलित आला, ये कितना ब्यूटीफुल। सी कृष्णा इज अ भक्तों का देव है, उसे ना बहुत अच्छा लगता है अटेंशन, ओके, ही लव्स दिस अटेंशन दैट ही गेट्स फ्रॉम ऑल हिज डिवोटीज। मैं भक्त हूं, तुम मेरे भगवान हो, हम दो अलग हैं लेकिन मुझे तुम्हें पाना है। ये जो भक्ति भाव है ये द्वैत भाव है, राइट, इट इज 2 डिफरेंट एंटिटीज। अद्वैत में होता क्या है, अद्वैतिक ज्ञानी क्या होता है, मैं और तुम एक हैं, राइट, मैं खुद को ही क्या वर्शिप करूं, राइट, एवरीबडी इज अ सिंगल मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम लिमिटलेस सोल, आत्मन, ब्रह्मन, राइट। तो उसमें क्या होता है ना, वर्शिप नहीं होता है, तो कृष्ण को ना वो पसंद नहीं है। तो किस चीज से मारा जाए, लुक एट जनीज भाव, ओके, वो जनी बोलती है मैं तुम्हें मारूंगी, किससे मारूंगी, सोहम शब्द नाद केला विठ्ठल काकुलित आला, वो व्याकुल होके आ गया, किससे, क्योंकि सोहम शब्द, सोहम मतलब हम सा, मैं तुम हूं, मैं अगर अद्वैती बन जाऊं तो विठ्ठल तड़पेगा क्योंकि उसको एक भक्त कम हो जाएगा, राइट। तो जनी से देखो मैं ना सोहम बन जाऊं, मैं सोहम बोलूंगी, मैं तुम बन जाऊंगी, अद्वैत हो जाएगा, तो फिर तुम्हें मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। तो काकुलित आला मतलब वो व्याकुल होके आ जाएगा, यू नो, दैट इज व्हाट जनी इज सिंगिंग। जनी म्हणे बा विठ्ठला जीवे सोडी न मी तुझला। एक चोर को लेने के बाद, जजमेंट होने के बाद उसको हम क्या करते हैं, कारागृहवास में जन्म ठेप, राइट। सो शी सेज जीवे सोडी न मी तुझला, I will not leave you for my entire life. You are now imprisoned me in my heart for all your life. That is what she is saying. धरीला पंडरीचा चोर is a very beautiful अभंगा। हम लोग में से काफी लोगों ने सुना होगा। I think Lata has sung that, or I don't know, Asha और Lata, one of them has sung that. तो यहाँ पे अभंग का गाना चल रहा है, सामने से विठ्ठल भी बात कर रहा है, वहाँ गोनाई को ना आवाज सुनाई दे रहा है कि जनी के कमरे से किसका आवाज आ रहा है रात के समय। तो गोनाई आ जाती है और वो चिल्लाती है क्या हो रहा है वहां पे आवाज। तो जनी बिकम्स वेरी अफ्रेड, बोलते कुछ नहीं माँ जी मैं ही हूँ। बोलते हैं नहीं कोई लड़के का भी आवाज सुनाई दे रहा है अंदर से, बोल के ना बाहर एक देयर इज अ स्टिक, वो स्टिक लेके ना अंधेरे में शी हिट्स एट द प्लेस वेयर दैट लड़के का आवाज आ रहा है। वो विठ्ठल को लगता है, विठ्ठल जोर से चिल्लाता है। इतने में ना नामदेव महाराज आ जाते हैं, बोलते हैं माँ क्या कर रही हो तुम, अंदर विठ्ठल है, अनुग्रह हो रहा है जनी पे, कृपा हो रही है, तुम कहाँ यहाँ पे आके अभी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ना गोड़ाई को बहुत बुरा लगता है, अरे मैंने ना लकड़ी लेके मार दिया विठ्ठल को। बोलते हैं हाँ माँ यशोदा के बाद अगर कृष्ण को किसी ने मारा वो तुम ही हो। तो अभी चलो जनाई पे कुछ अनुग्रह हो रहा है, डोंट डिस्टर्ब देम, टेक्स अवे हिज मदर। जनी काम करते ना थक जाती है, छोटी सी बच्ची है, राइट, सो लेती है, शी जस्ट आंख लग जाता है, सो जाती है। विठ्ठल बाकी का काम ऐसे खत्म कर देता है, आटा पीसना, व्हाटएवर हैज टू बी डन, एवरीथिंग इज डन। इट इज ऑलरेडी टाइम फॉर काकड़ आरती। काकड़ आरती के लिए वहां पे अगर नहीं गया तो लोग बोलेंगे अरे मूर्ति कहाँ गया, राइट, वहां पे वापिस जाके कमर में हाथ धरे बैठना, खड़ा रहना, उसको दर्शन के लिए आएंगे। सो ही हैज टू गो बैक, तो ही रशेस, वो उसको उठाता भी नहीं है, वो चला जाता है। बड़वे मतलब वहाँ जो पंढरपुर में जो पूजा करते हैं उनको बड़वे महाराज बोलते हैं। बड़वे आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, दे आर शॉक्ड, विठ्ठल तो है मगर वो फटा हुआ, पैच किया हुआ, घाघरा चोली में हाथ धरे खड़ा है। अरे इसको तो रात को दागिना डाल के रखा था, पीताम्बरी सिल्क का डाला था, वो सब कहाँ गया। बोलते शेजारती करने के बाद दरवाजा किसने बंद किया, तो बोलता हम, कोई आके बोलता मैंने किया, मगर सब ठीक ही था। बोलते क्या ठीक था, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो कुछ किसी का फटा हुआ सब इसे गंदे कपड़े पहन के खड़ा है यहाँ पे विठ्ठल, मतलब रात को कहीं तो गया है। दे न्यू, ओके, दैट वाज अ टाइम व्हेन विठ्ठला यूज्ड टू बिहेव लाइक अ ह्यूमन, इंटरैक्ट विद डिवोटीज, बिकॉज उस टाइप के भक्त थे। अभी हमारे यहाँ पे विश्वास ही नहीं होता, राइट। हम तो पहले पूछेंगे अरे ऐसे भी कहीं भगवान बाहर आके मिलता है क्या, खाना खाता है क्या, नाचता है क्या, तो इसलिए वो आता भी नहीं है। हम लोग डाउट करेंगे तो वो आएगा भी नहीं, ये विश्वास से हम लोग रखेंगे तो आएगा, तो वो तो आ जाएगा, यू नो, दैट इज व्हाट इट इज। मगर तभी के लोग को पता था, उनको पता है
चोखा मेड़ा ने बुलाया था तो नदी के उस पार चले गए थे, राइट। चोखा मेड़ा पे जब उन्होंने वो चाबुक चलाया तो इट केम ऑन बड़वे का पीठ पे आ गया और विट्ठल महाराज के पीठ पे आ गया। तो दे नो कि विट्ठल हैज दी कैपेबिलिटी, किसी के भी घर पे जाने का वो है, कैपेबिलिटी रखता है, तो शायद किसी का घर पे गया रहेगा। मगर ये किसके कपड़े पहन के आया है? ये 500 जगह पे ये पैच वर्क किया हुआ, ये किसका कपड़ा है? परकर पोल का, किसी लड़की का लग रहा है। तो वहां पे कोई और एक असिस्टेंट है, वो बोलता है ये देखा हुआ लग रहा है, ये ना नामदेव महाराज के घर पे एक नौकरानी है जनी, ये शायद उसके लग रही है, इतने फटे हुए सिर्फ उसी के हो सकते हैं। तो बोलते नामदेव महाराज तो बड़े भक्त हैं, वो तो सभी जानते हैं, 5 साल की उम्र से ही इज अ बिग सेंट। तो गए होंगे उनके घर पे, रात को गए होंगे उनके घर पे, चलते हैं उनके घर पे, शायद उन्होंने कपड़ा दागिना सब छोड़ा होगा, जाके पूछ के लेके आते हैं। आरोप नहीं है, जाके लेके आ जाते हैं, विट्ठल भूलने की आदत है, ये सब करेगा वो। तो नामदेव महाराज के घर पे पहुंच जाते हैं। नामदेव महाराज घर पे पहुंच के वो बोलते हैं विट्ठल आए थे क्या? तो नामदेव महाराज बोलते हैं हाँ विट्ठल कल यहीं पे था, रात भर यहीं पे था। तो बोलते हैं उन्होंने कपड़े छोड़ के गए, दाग दागिने छोड़ के गए। बोलते वो तो नहीं पता, रात भर तो वो जनी के कमरे में ही था, तो आप जनी से पूछ लीजिए। तो जनी से आके पूछते हैं, तो जनी भी बोलती है हाँ यहीं पे थे, वो रहा उनके कपड़े। तो बोलते हैं दागिने वगैरह किधर है? तो बोलते वो तो मुझे नहीं पता, दागिने सब तो मैंने देखा नहीं, वो वहां तक तो मेरा ध्यान भी नहीं गया, मैं तो आधे समय से ज्यादा मैं रो ही रही थी, विट्ठल का भी दर्शन ढंग से नहीं हुआ। मगर मैं कपड़ा बदलने वाला हूं करके बोल के उसने कपड़ा तो बदल, ही हैज चेंज्ड हिज क्लोथ्स, वो वहां पे रखा है। तो वो ना गुस्सा कर लेते हैं, बोलते हैं जनी देखो हम सीधे से पूछ रहे हैं तुमसे, तुम सीधे से बता दो, कपड़ा अगर बदला है दागिना भी यहीं पे रहेगा, छुपाओ मत, हम लेके चले जाएंगे, हम नहीं करेंगे आरोप, क्योंकि आदत है विट्ठल को ये सब करने का। जनी सच में बोल रही है, मुझे नहीं पता कि विट्ठल ने दागिने कहाँ रखे हैं, कपड़े बदले, वो देखो कपड़े हैं। तो कपड़े उठाने के बाद जब झटकते हैं तो उसमें से दागिना निकलता है। तो बोलते देखो मैंने पूछा था, तुमने बताया नहीं, ये हमको मिला है, तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी, अभी तुम पे चोरी का इल्जाम आएगा। तो रो देती है, बोलती मैंने नहीं किया है कुछ, मुझे पता ही नहीं है, विट्ठल आए थे कपड़े बदले, ये कभी रख के गए मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना है दागिने से। बोलता ये मुझे मिला है, अभी तुमने 2 बार पूछा, तुमने बताया नहीं, अभी तो तुम पर चोरी का इल्जाम आएगा, ये अभी जाएगा पंचायत में और वो जो भी निर्णय देंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो नामदेव भी बोलते हैं ठीक है, उनको पता है ये लीला हो रहा है, ही नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वो जाते हैं तो वो जो उन लोग जो निर्णय लेते हैं ना, वो बोलते हैं ये एक नामदेव महाराज जैसे एक संत के घर पे रह रही है, खुद विट्ठल उसको दर्शन देने को आए, मतलब वो भी एक बड़ी भक्त ही होगी, संत नहीं है तो भक्त तो होगी, एक भक्त बन के चोरी कर रही है, इसका सजा इस तरह का होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि ऐसे कोई ढोंग ना करे, इसको अभी मौत की सजा देना चाहिए। भगवान का एक सामान को चुरा के, झूठ बोल के, भक्त का ढोंग रच के ऐसे लोगों को मौत ही देना चाहिए, तभी आगे जाके इट बिकम्स एन एग्जाम्पल। सो दे गिव एन वेरी एक्सट्रीम पनिशमेंट। जनी इज क्राइंग, बोलते मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सच्ची में पता नहीं है, विट्ठला तुमको ही अजय आके मदद करना होगा। नामदेव भी बताने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो ही इज नॉट गिविंग फुल फोर्स बिकॉज ही नोज विट्ठल इज गोइंग टू कम एंड हेल्प, ही नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो वो क्या करते हैं, चंद्रभागा के तट पे ना एक शूल मतलब ना ट्री का बार्क को ना ऐसे कोन के शेप में दे शार्पन, और उसके ऊपर तेल डालेंगे, वो इतना शार्प होगा ना, ऊपर अगर किसी को बिठाएंगे ना तो बॉडी ऐसा खच करके इट विल जस्ट गो इन हाफ। ओके, तो सूली पे बिठाना बोलते हैं ना, वो सूली पे बिठाना इज दिस। ओके, तो वो शूल बना लेते हैं, ऊपर से तेल वगैरह डाल के उसको चिकना बना लेते हैं ताकि देयर इज इंस्टेंट डेथ। एंड ये सब आते हैं जनी के घर पे, जनी को ले जाने के लिए आते हैं। जनी इज बीइंग ड्रैग्ड लिटरली बिकॉज जनी इज सेइंग मैंने नहीं किया कुछ, प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने नहीं कुछ किया। नामदेव भी बोल रहे हैं छोड़ दो, नहीं किया है उसने। As she is going, she is singing an abhanga, and she is singing what? And this is the exactly what is happening. पदक विठ्ठलाचे गेले, पदक मीन्स दैट वो जो नेकलेस वगैरह पहनते थे, ब्राह्मण म्हणती जनी ने नेले। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाले अभंग में 2 जगह पे ब्राह्मण करके एक रेफरेंस आता है। एंड मॉडर्न एनालिस्ट्स, आई विल नॉट कॉल प्रवचनकार, एनालिस्ट, उन लोग क्या करते हैं ना, वो बहुत संकुचित तौर पे देखते हैं इस चीजों को। वो एक दलित है,
ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण उस पर शोषण कर रहे हैं, ये इस एंगल से देखते हैं. जनी के अभंग में है ब्राह्मण का रेफरेंस. इट इज लाइक दिस. से आईपीएल खेल रहे हैं, राइट, मुंबई वर्सेस चेन्नई. अभी इंडिविजुअल प्लेयर्स का नाम बताएंगे कि मुंबई हैज वन ओवर चेन्नई बताएंगे. वील जस्ट से मुंबई हैज वन ओवर चेन्नई, राइट. इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल को रेफरेंस देने का एक काम है. इट्स ओनली क्लासिफाइंग. सो यू डोंट से रोहित शर्मा ने धोनी को हराया. यू से मुंबई हैज डिफीटेड चेन्नई. The reason I gave this example is because I love to see Mumbai win. So, when you see a group of people, you just call them by their reference, right? So the fact of life is that they were Brahmins because they were looking after the puja of the temple. तो वो ब्राह्मण थे because वो जन्म से ब्राह्मण थे, and that ends there. There is nothing like ब्राह्मण ने दलित पे शोषण किया. इस हेतु से वो जनाबाई ने गाया नहीं है वो अभंग. पदक विठ्ठलाचे गेले ब्राह्मण म्हणती जनीने नेले. ब्राह्मण बोल रहे हैं, अगे शिंपयाची जनी. शिंपया मीन्स, शिंपी मीन्स टेलर इन मराठी. ओके, नामदेव महाराज वॉज अ टेलर बाय प्रोफेशन. तो शिंपी के जनी, नामदेव महाराज के जनी, अगर शिंपयाचे जनी नेले पदक दे आणुनी. तू पदक लेके गई है, दे वापस. देवा समोर तुझे घर, तुझे येणे निरंतर. तुम यहीं पे आजू बाजू में रहती हो, तुम यहीं के हो, तुम इतना कैसे, ऐसे कैसे चोरी कर लिया तुमने. जनी बोल रही है, म्या गेले नाही, नेले नाही जाण, सख्या विठोबाची आण. सखा विठोबा मेरा सखा है, उस पे मैं प्रॉमिस कर रही हूं, मैंने नहीं लिया है. धोतर झाड़ूनी पाहती, पडले पदक घेऊनी जाती. वो धोतर, वो जो पीतांबरी जो पहना था, वो जब झटक के देखा तो वहां पे मिला ना उनको दागिना. दैट इज व्हाट शी इज सिंगिंग. जनीवरी आली चोरी, ब्राह्मण करती मारा मारी. उस पे चोरी का इल्जाम आ गया और ब्राह्मण उनको मार रहे हैं. धावी नले 40 गड़ी. 40 people came it seems, okay, to take जनी to that शूल. 40 लोग आए. जनीवरी पडली उड़ी, चंद्रभागे रोविला शूल, जनाबाईस आले मूल. चंद्रभागा के तट पे वो शूल को उन्होंने रखा है. जनाबाई का मूड मतलब द बॉटम पार्ट, वो रखने के लिए. ओके, सो दैट गेट्स स्प्लिट. मगर जनाबाई कैसे जा रही है फ्रॉम हर हाउस टू दैट प्लेस. हाउ इज शी गोइंग. हाथी ताड़ी वाजविता मुखी विठ्ठल बोलती. वो हाथों में ताल बजा के गाते गाते विठ्ठल विठ्ठल बोलते जा रही है. वो धीरे से आ रही है, इसीलिए इन लोग बोल रहे हैं, विलंब लागला ते वेळी म्हणती जनीला घ्यारे सुली. इन लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत देर हो रहा है, चलो इसको डालो सूली पर. ऐसे येळकोट केला, ऐसे उन्होंने चिल्लाया. जनी मणे विठ्ठो मी मेला, आई एम गोइंग टू डाई विठ्ठला, मदद करने के लिए आओ. तव सुळाचे झाले पाणी, धन्य मणे दासी जनी. सबके नजरों के सामने जनी स्टैंडिंग एंड शी इज सिंगिंग, विठ्ठला मैं मरने वाली हूँ, मदद के लिए आ जाओ. सबके सामने वो शूल वैसे के वैसे पिघल के पानी हो जाता है. ये जगह जहां पे शूल का पानी हो गया वो अभी भी है. इट सीम्स इन पंढरपुर. तो सोळाचे झाले पानी, विठल खुद आ जाते हैं. दर्शन सिर्फ संतों को मिलता है, बाकी लोगों को सिर्फ अशरीरी सुनाई दे रहा है, भगवान की आवाज सुनाई दे रहा है. ये मेरी जनी है, ये मेरी भक्त है, इसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता. ये जनी नहीं है, ये संत जनाबाई है. एंड दैट इज द मैनर इन विच कृष्णा इंट्रोड्यूसेस जनी टू द एंटायर वर्ल्ड. तो जनी बनी जनाबाई, राइट. एंड दिस इज अ वेरी रेयर डिस्टिंक्शन. सभी संतों को हम मानते हैं. विठ्ठल ने बोलते हैं कि ज्ञानेश्वर संत हैं, नामदेव महाराज संत हैं. ये विठ्ठल नहीं बोल, किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया, राइट. हम लोग ने उनका चरित्र जान के हमने मान लिया उनको संत. अगर एक ऐसे संत है जिनको विठ्ठल ने खुद इंट्रोड्यूस करवाया और बोला कि शी इज जनाबाई, शी इज संत जनाबाई, इट इज विठ्ठल, इट इज जनाबाई. देयर इज नोबडी एल्स हूज गॉट दैट डिस्टिंक्शन. इट्स अ रेयर डिस्टिंक्शन जहां एक नौकरानी जिसने अंतरंग भक्ति की, विठ्ठल खुद आके उसको प्रकट करवा के एंश्योर दैट द एंटायर वर्ल्ड कम्स टू नो ऑफ द ग्रेटनेस एंड द काइंड ऑफ भक्ति, द फ्लेवर ऑफ भक्ति दैट जनी वाज. इस तरह से सब लोग खुश हो जाते हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं, जय जनाबाई, जय विठ्ठल, जय पांडुरंग. Everybody is happy because they got one more saint, right? अपने लाइफ में एक संत को देखना कितना बड़ा बात है. उस समय में तो संतों का प्रलय था. It was like full of saints.
उसमें जनाबाई का भी उनको एक दर्शन हो गया। ये देख के पंढरपुर निवासी को बहुत खुश हो जाते हैं। तो विठल महाराज बोलते हैं चलो चंद्रभागा से मंदिर तक अभी हम जाएंगे, सब लोग गाते गाते चलो, अभंग गाते गाते चलो। तो एवरीबडी इज सिंगिंग, ओके, एवरीबडी इज सिंगिंग अभंग। कभी माउली गा रहे हैं, कभी नामदेव गा रहे हैं, कभी चोखा मेड़ा गा रहे हैं, एवरीबडी इज कम। कबीर महाराज भी हैं उस समय, कबीर भी देख रहे हैं कि कैसे मुझे जो लगा कि निर्गुण है, निराकार हैं, वो कैसे साकार सगुण बन के सबको दर्शन भी दे रहे हैं, उन पे लीला भी कर रहे हैं, इसका आनंद लेते कबीर महाराज भी हैं। एवरीबडी इज वॉकिंग टुवर्ड्स द मंदिर। जनाबाई इज एट द बैक। और वो जिस तरह से विठल जा रहे हैं, लोगों के कंधे पे हाथ रख के जिस तरह से जा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने जनीत पर करुणा की, एक माँ के तरह आके उन्होंने करुणा की। moment that she saw this drisya, she sings a very beautiful abhanga, again something that all of us are aware of it, and it was the same photo which Rajesh ji also had sent on WhatsApp, जहाँ विठल महाराज का एक फोटो है और कंधे पे एक संत है, कमर पे एक है, हाथ धरे दो जन हैं, एंड सारे संतों को लेके विठल महाराज जा रहे हैं। अगर आप आळंदी जाने का कभी आपको भाग्य मिला तो आळंदी में ना दर्शन लेते वक्त यू हैव टू काइंड ऑफ गो थ्रू अ कपल ऑफ रूम्स। सो इन वन ऑफ द रूम एक लार्ज एक फोटोग्राफ रखा है, ये इस अभंग को दर्शाते हुए। ये अभंग को ये जो पेंटिंग है, ये अभंग का पिक्चराइजेशन है, ओके। इट हैज बीन पेंटेड बेस्ड ऑन दिस अभंग। विठू माझा लेकुरुवाळा, लेकुरुवाळा मीन्स ही इज अ मदर ऑफ चिल्ड्रन, लेकुरु मीन्स चिल्ड्रन। और कौन है उसके लेकुरु, कौन है उसके चिल्ड्रन? विठू माझा लेकुरुवाळा संगे गोपाळांचा मेळा। किस तरह से जा रहा है वो, मेला बना के, सब संतों का मेला बना के वो लेके जा रहा है। कौन कौन है? निवृत्ती हा खांद्यावरी, कंधे पे निवृत्ति है, सोपानाचा हात धरी, सोपान देव का हाथ पकड़ के, पुढे चाले ज्ञानेश्वर, आगे ज्ञानेश्वर है, मागे मुक्ताई सुंदर है, उनके पीछे मुक्ताई है, गोरा कुंभार मांडीवरी। तो हम जब उठाते हैं ना बच्चों को, कभी कभी कमर में ऐसे उठा लेते हैं, कभी कभी जस्ट यहीं पे करीब जाना हो ना तो सिर्फ ऐसे उठा के वी जस्ट टेक देम टिल द थाई, ऐसे ऐसे पकड़ के गो एंड ड्रॉप देम, यू नो। सो वी डू बोथ, कभी कभी कमर तक भी उठा लेंगे, कभी कभी जस्ट हाफ। गोरा कुंभार मांडीवरी, मांडीवरी मीन्स झांग पे गोरा कुंभार है, चोखा जीवा बरोबरी, बाजू में चोखा भी चल रहे हैं, संत बंका कड़ेवरी, कमर में संत बंका है, नामा करंगुली धरी, एक उंगली पकड़ के नामदेव चल रहे हैं, जनी मने गोपाळा करी भक्तांचा सोहळा। शी सीइंग दिस, दैट इज व्हाट द वे विठल इज गोइंग लाइक अ मदर। लेकुरेवाड़ा मतलब इज अ मदर टू ऑल दिस सेंट्स। कोई कंधे पे बैठा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई कमर में है, कोई जांग पे पकड़ के सब संतों को लेके जा रहे हैं। जनी ने एक अभंग बंद कर दिया, फिर नामदेव गा रहे हैं, नामदेव के बाद माउली गा रहे हैं। और एंड विठला is always craving for attention, वो उसे इतना पसंद है, he is completely filled, he is so happy, वो नाच रहा है, he is dancing with all the भक्त लोग गा रहे हैं जय विठल जय पांडुरंग, अभंग गा रहे हैं, विठल नाच रहा है। ये पूरा नाचने का जो चालू है ना, वो सीन को भी जनी सिंह एन अभंग बोल रहे हैं। नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरे नाचे पांडुरंग, नामदेव महाराज कीर्तन कर रहे हैं और एक जगह पे प्रेम से भरे कौन नाच रहा है? पांडुरंग खुद नाच रहा है। जनाबाई म्हणे देवा बोला अभंग, वो बोल रहे नामदेव महाराज को, देवा अभंग बोलते रहो बोलते रहो, वो देखो विठल नाच रहा है, बंद मत करो, और गाओ और गाओ। अभंग बोलता बोलता कीर्तनी रंग ओढावला, प्रेमाची आनंदे देव नाचू लागला। ये वो पूरा प्रेम देख के, वो भक्ति देख के खींचा चला आया, वो विठल नाच रहा है। ये वाला पैरा देखो, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वन। ये ना वो नाचते 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 ना, उसको पता भी नहीं चला है कि उसका जो पीताम्बर, उसका जो धोतर है ना, वो सड़क के नीचे चला गया है, वो कौपीड़ में नाच रहा है। नाचता डोलता देवाचा घडला पीतांबर, सावध होई देवा, ऐसे बोले कबीर साइड में खड़े बोल रहे सावध हो देवा, तुम्हारा पीतांबर नीचे सरक रहा है, ओके। जो जैसे हो रहा है वैसे हम लोग गा रहे थे, जस्ट सिंगिंग व्हाट इज हैपनिंग देयर। नामयाची जनी लोळे संताते पाई, जहां संत चल के गए वहां पे शी इज रोलिंग हरसेल्फ। जनन मरणापासून मुक्त करती विठाबाई, अपने जन्म मरण से वो मुक्ति देती है विठाबाई। नामदेव बोल रहे एक और अभंग गाओ,
And then she sings one more very famous abhang. Again, you must have heard this. पंडित जितेंद्र अभिषेकी ने गाया हुआ बहुत ब्यूटीफुल अभंग है. संत भार पंढरीत. संत भार कितने संत है, पूरा भरा हुआ है, राइट. पंढरपूर इज फुल ऑफ सेंट्स. कीर्तनाचा गजर होत. तेथ असे देव उभा. वहां पे भगवान खड़ा है. कैसे खड़ा है? जैसे समचरणींचा शोभा. उनका चरण ना ऐसा समचरण है. हम लोग का चरण ना एक लंबा एक छोटा होता है, उनका समचरण है. रंग भरे कीर्तनात प्रेम हरिदास नाचत. सब लोग गा रहे हैं, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, भगवान भी नाच रहा है. सखा विरला ज्ञानेश्वर. यहाँ पे भाव देखो, सखा ज्ञानेश्वर. ज्ञानेश्वर ये परमेष्ठी गुरु है, गुरु के गुरु के गुरु के गुरु है वो. ओके, फिर भी कैसे वो दादा है, वो सखा है, इज अ फ्रेंड. सखा विरला ज्ञानेश्वर नामयाचा जो जिव्हार. ऐसा संत चरण जो जावे, जनी म्हणे त्याला द्यावे. जनी सेज व्हाट? जनी म्हणे, जनी सेइंग व्हाट? जो विठल को नमस्कार करो नहीं बोल रही है, ये संतों को करो नहीं बोल रही है, ये संतों के शरणों में जो जाएंगे उनको नमस्कार करो बोल रही है. ऐसा संता शरण जावे. ओके, जनी म्हणे त्याला द्यावे. उनको पूजा करो. जो संतों को पैर पे जाके नमस्कार करे वो भी संत है, उनको जाके नमस्कार करो. ऐसे नाचते गाते विठल गोज बैक इनटू हिज मंदिर. बट बिफोर गोइंग बैक, व्हाट डिड ही डू? ही गिव अस अनदर सेंट, राइट. संत जनाबाई जैसे एक महान संत को हमें इंट्रोड्यूस करवा के गए. संत जनाबाई गोज ऑन टू लिव फॉर क्वाइट सम इयर्स. सैकड़ों अभंग उन्होंने लिखे हैं. माई बिलीफ, प्रकट होने के पहले जिस तरह से विठल ने उनके लिए अभंग लिखे, वो अनपढ़ थी, उन्होंने कभी लिखा नहीं होगा. उनके लिए लिखने के लिए भी कोई हुआ नहीं रहेगा. ये तो आज हमें अगर सैकड़ों अभंग मिल रहे हैं तो मैं फर्म बिलीव दैट विठल ने लिखे हुए ही हमें मिल रहे हैं. बाकी सब संत एक तरफ, बिकॉज उनको किसी और ने लिखा हुआ अभंग है. अगर हमें आज जनाबाई के अभंग मिलते हैं तो खुद विठल ने लिखे हुए अभंग हमें मिल रहे हैं, तो इट इज अ वेरी स्पेशल. इट्स दैट टाइप ऑफ अभंग इज, वो अलग फ्लेवर है उसका. एक माउली के जो समाधि पर्व, हमने माउली का कथा जब का अनुभव लिया था, आई हैड कवर्ड दिस स्टोरी. माउली डिसाइड्स टू टेक समाधि एंड देन वो किस तरह से उन लोग पंढरपुर से आळंदी जिस तरह से वारी करते हैं उस तरह से परत वारी करते हैं. विठल खुद लीड्स दी वारी. उस दिन त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को वो ही टेक्स समाधि. समाधि लेने के पहले वो नहा के आके वो ही इज अबाउट टू एंटर द सेलर. एवरीबडी इज क्राइंग. निवृत्तिनाथ जैसे एक अद्वैती सेंट ऑल्सो क्राइज, राइट. क्योंकि लिए कौन? माउली इज ज्ञानियांचा राजा, राइट. किंग ऑफ सेंट्स. सेंट्स आर ग्रेट, सवाल ही नहीं है. नामदेव महाराज, एकनाथ महाराज वगैरह ग्रेट है ही, उसमें कोई सवाल ही नहीं है. माउली इज 10 times them, राइट. वो सभी लोगों के संत गुरु थे. वो कितने तो संतों ने माउली पे अभंग लिखा है. एकनाथ महाराज का माउली पे अभंग है, तुकाराम महाराज का माउली पे अभंग है, राइट. ऐसे एक संत जिन पे अभंग लिखा गया, ऐसे एक संत समाधि लेके जा रहे हैं. ये दुख लोगों से देखा नहीं जा रहा है. ऐसे समय पे जनी आके नमस्कार करती है, बोलती है दादा मुझे एक वरदान दे दो. रोते रोते बोलती है मुझे एक वरदान दे दो. तो ज्ञानेश्वर पूछते हैं जनी क्यों, क्या हुआ? रो मत, क्या हुआ? मैं कहीं नहीं जा रहा. बोलते हैं नहीं मुझे अभी के अभी मरण दे दो. तो ज्ञानेश्वर गले लगते हैं, बोलते हैं जनी ऐसे क्यों मांग रही हो? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. बोलते हैं नहीं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वापस जन्म लेना है, मुझे लड़की बन के जन्म लेना है, ताकि आप जब वापस जन्म लेंगे तो आप मेरे कोख में जन्म लीजिए, मुझे आपका माँ बनना है. एंड शी क्राइज. माउली ऑल्सो क्राइज. ही सेज ये जनी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और ये वरदान मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं. मैं संजीवन समाधि में हूं. ये युग के अंत तक मैं यहीं पे हूं. मेरा जन्म इतना जल्दी वापस होने नहीं वाला है. द बिलीफ इज माउली स्टिल देयर इन आळंदी, राइट. सबको जाना है और इस बिलीफ के साथ जाना है कि माउली इज देयर, राइट. ही इज प्रॉमिस्ड इज गोइंग टू बी देयर. और एक संत का वचन कभी झूठा नहीं होता. माउली है वहां पे. जब जाएंगे आपको पता चलेगा कि माउली है. तो बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं जनी, मैं ये वरदान नहीं दे पाऊंगा. एंड दैट इज हाउ ही टेक्स द फाइनल समाधि. उसके बाद काफी साल जनी लिव्स. नामदेव महाराज ऑल्सो बिकम्स ऑफ 80 years.
नामदेव महाराज का बहुत बड़ा चरित्र है. जस्ट गिव यू 1 सेकंड, मला पटकन हे देना तिथे बघ. ते वाईट आहे. सॉरी, बैटरी लो हो रहा था लैपटॉप का. शी लिव्स. नामदेव महाराज का भी बहुत बड़ा चरित्र है. वो काशी यात्रा करते हैं, फिर पंजाब भी जाके वहाँ पे रहते हैं. वहाँ पे हिंदी में भी उन्होंने भजन लिखे हैं. उन्होंने लिखा हुआ भजन काफ़ी अभी भी अपने को गुरु ग्रंथ साहिब में इट इज़ टेकन. सो नामदेव महाराज का चरित्र में वो सब कवर होगा. नामदेव महाराज का पूरा यात्रा होने के बाद ही कम्स बैक. इज़ नाउ 80 years ओल्ड. थके हुए हैं. बोलते हैं विट्ठल महाराज से कि हो गया मेरा अवतार का कार्य, मुझे भी अभी मुक्ति दे दो. मेरे साथ जो भी थे सब चले गए, मुझे भी अभी मुक्ति चाहिए, मुझे भी अभी समाधि लेना है. तो विट्ठल महाराज बोलते हैं कि मैंने माउली को ऑप्शन दिया था कैसे चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें भी देता हूँ नामदेवा, तुमको कैसे चाहिए तुम्हारा समाधि. तो बोलता है मुझे वैकुंठ नहीं आना तुम्हारे साथ, मुझे भू वैकुंठ पंढरपुर में ही रहना है. मुझे तुम्हारे पायदान, तुम्हारे स्टेप्स में ही रहने दो, ताकि जो भक्त आएंगे उनका जो पैरों का धूल है वो मुझ पे चढ़ते रहने दो. मुझे यही का रहने दो, मुझे पंढरपुर वासी बन के रहने दो. इज व्हाट नामदेव महाराज आस्क्स एज अ बून. तो भगवान विट्ठल क्या करते हैं कि जस्ट स्प्लिट्स ओपन द अर्थ. ऐसे वो ओपन कर लेते हैं अर्थ को. नामदेव महाराज और उनके साथ उनकी माँ, पिताजी, बहन, भाई, उनके बीवी, बच्चे एंड जनाबाई एंड लॉट ऑफ अदर डिवोटीज, दे ऑल वॉक इनटू दैट एंड देन विट्ठल क्लोजेस इट. तो आज भी पंढरपुर के मंदिर के जस्ट बाहर, जस्ट एंट्रेंस पे नामाची पायरी, मतलब पायरी मीन्स पायदान, नामा मीन्स नामदेव, नामाची पायरी करके वहाँ पे है. उसका पहले दर्शन लेना होता है, फिर अंदर जाके विट्ठल का दर्शन लेना होता है. हम लोग का पैरों के धूली के लिए राह देख रहे हैं नामदेव. मतलब जाके उस पर पैर रखना नहीं है अपने को, पैरों के धूली हवा से चले जाएगा. हम लोग चलेंगे जादू से भी उनको आहट से पता चल जाएगा. मगर वो सिर्फ नामाची पायरी नहीं है, वहां पे बहुत संतों का समाधि है. राइट, नामदेव वॉक्स विद लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग आवर ओन जनी हु बिकम संत जनाबाई. उनका भी समाधि उधर ही है. 1350 एज पर द इंग्लिश कैलेंडर, आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी, एकादशी होने के बाद, आषाढ़ एकादशी, शुद्ध एकादशी होने के बाद जो कृष्ण त्रयोदशी आता है, दैट इज द टाइम व्हेन नामदेव महाराज टेक समाधि. And along with Namdev Maharaj, along with others, Janabai also takes samadhi there. अगर जाना हुआ, जाना चाहिए, जाना हुआ तो नामाची पायरी तो देखे बगैर अंदर जाना होता ही नहीं है. तो सिर्फ नामदेव महाराज को याद नहीं करना, बहुत सारे लोग उनके साथ हैं वहाँ पे, उन सबको याद करना है और जनी को भी याद करना है. उसके गुप्त भक्ति, उसका वो प्रेम, उसका वो रोना, उसका पिघल पिघल के भक्ति करना, और उसने जिस तरह से विट्ठल को पाया उसको भी याद करके नमस्कार करके आगे बढ़ना है. जनी ने जो जो यूज़ किया था, उन्होंने जो वेसल्स यूज़ किया था, वो आई एम नॉट टू श्योर नामदेव महाराज के घर पे है या गोपालपुरी करके अबाउट 5 किलोमीटर्स दूरी पे एक है. वो भी इट इज़ ऑल्सो, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज अराउंड दैट ऑल्सो. तो वहाँ पे शायद, सॉरी गोपालपुर बोलते हैं ना, गोपाल मठ, राइट. वहाँ पे शायद उनके सारे चीज़ रखे हैं. मनीष जी एंड देयर फैमिली एंड राजेश जी एंड दे आर रेगुलर विजिटर्स टू पंढरपुर. and they have seen this place जहाँ पे उन्होंने उनका सारा जो उनका जो किचन के जो सामान है वो सब रखे हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ हम क्या कुछ देखने चले जाते हैं, माइकल जैक्सन का हैट और शूज़, और जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहाँ से टाटा किया, ये सब देख लेते हैं. हमारे संतों ने जो यूज़ किया है वो चीज़ हमें देखना चाहिए, उसको प्रिजर्व करके रखा है. वी शुड शो आवर चिल्ड्रन, राइट. दैट इज़ हमारा धरोहर है, दैट इज़ आवर वेल्थ, एंड वी शुड शो दैट टू आवर चिल्ड्रन. तो इस तरह से एक 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 नौकरानी जो संत बनी, विट्ठल की कृपा से वो संत बनी. ऐसे एक जो अंतरंग भक्ति करके जिसने विट्ठल को पाया, ऐसे एक महान संत का हमें कथा सुनने का भाग्य मिला. आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप आई वॉज क्लियर. आई होप यू आर लाइक्ड द स्टोरी. ये एक स्टोरी ऐसा है जब भी मैं सुनता हूँ, जब भी पढ़ता हूँ, without crying you cannot, because it is so emotional. You know, the feelings of Janabai, her viraha, her longing for Vitthala,
and the manner in which Vithala does that whole leela of giving her darshan is just so beautiful and emotional. I always wanted to cover Janabai's story, and I thank you. I thank all gods for having given me that opportunity. Dhanyavad. Dhanyavad. Thanks. Hope it was clear, and yeah, it was completely audible. Great. Thanks. Have any questions? Feel free to ask. Anything that you will want to share, feel free to do so. I have already exceeded my time. Otherwise, we can go ahead with. Yes. Jayu, Suresh, tell me. You can unmute yourself. Okay, great. Fair enough. Thank you. So we'll go ahead with our Hanuman Chalisa and end the session. Just to inform you all, I might have to again, take a break. I'm so sorry. हम लोग में क्या होता है ना, श्राद्ध 13 दिन के बाद पहले साल में हर महीने में करना होता है श्राद्ध. माय ब्रदर, माय मदर, माय फादर, दे आर ऑल एक्सट्रीम बिलीवर्स ऑफ वैदिक शास्त्र, एंड हम लोग हर महीना एवरी 30th डे वी हैव टू डू दिस श्राद्ध. सो मुझे बैंगलोर जाना पड़ेगा, अगला संडे आ रहा है. उसके बाद अगेन 45th डे होता है, 60th डे, देन एवरी मंथ, देन 6 months. इट्स अ वेरी एलैबोरेट प्रोसेस. आई विल टेक अ ब्रेक फॉर जस्ट कपल ऑफ वीक्स so that I am out of this entire श्राद्ध का ये होने के बाद I will resume next month में. I will try and resume. काफ़ी interesting saints है. I wanted to cover next is Sheshadri Swamigal. I am sure you all will like his story also, and I want you all to join in large numbers. Thank you. So we'll do Hanuman Chalisa. Shri Guru Charana Saroj Raja Nijamana Mukura Sudhari Varanau Raghuvar Bimala Jasu Jodaya Kupalachari Buddhihina Tanu Janike Sumiro Pavana Kumara Bala Buddhi Vidya Dehu Mohe Harau Klesha Vikar. Jai Hanuman Jnana Guna Sagar Jai Kapi Sati Uloka Ujagar Ramaduta Atulita Baladhama Jani Putra Pavana Sutanama Mahavira Vikrama Bajrangi Kumati Nivaras Kanchana Varana Viraja Subesa Kanana Kundala Kunchita Kesa Hat Vajra aur Dhwaja Viraje Kandhe Munj Jane Hu Saje Kar Suvana Kesari Nandana Tej Pratap Maha Jagabandana Vidyavan Guni Ati Chatura प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियೈ दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सबदन तुम रोयस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे कादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँते विद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना भोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांग गए अचरज नाहि गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरन आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हाँकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लाग सब पर राम तपस्वी तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोही अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार तु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की ये शत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय बोलो हनुमान की जय।